excited to host a small session with you all regarding the parenting issues which many of our parents are having during this pandemic. This is a small initiative from our side to address those issues and be ready to come out strong after this pandemic. So I welcome everyone to this platform where we can share and learn and also help our audience um, who will be seeing the recorded video. So I'll welcome again. We have one of our students, Mr. Abhishek Ganguly, who will be introducing all our panelists. Abhishek, so could you please welcome all our panelists and and then we can start with our session. Surely, ma'am. Surely. Thank you, ma'am, for also inviting me to this podcast. And I would like to thank all the panelists who are present over here, starting with psychologist, respected Father Dr. Joseph Daniel SVD. He has completed his PhD in clinical psychology from the University of Santo Thomas, Manila. Father Joseph is currently working as the school counselor of St. Paul's, Rourkela. He has conducted several training programs for administrators as well, for parents, for teachers and students on various topics related to mind, such as emotional intelligence, pro-social behavior development. And moving on to our next panelist member, psychologist Miss Akriti Vij. She has completed her master's degree in applied psychology from Tata Institute of Social Sciences and Banyan Academy of Leadership in Mental Health, Chennai. Ms. Akriti has extensive experience in working as a school counselor, wherein she has conducted several counseling sessions with parents and children parent counseling and orientation of the staffs. And she has pursued her career overseas as well, where she has done internship at the United Nations Office of High Commissioner for Human Rights. Then I would like to move on to our parents who have came here, starting with Mr. Raj Sahu. He is the father of Isha Rani Sahu, my senior. Then moving to Mrs. Plavani Pradhan, mother of Prapti Pradhan and Prakhyat Pradhan, students of St. Arnold School. Moving on to Miss Sanjukta Panda, mother of Mahima Panda, student of St. Arnold School. Then moving on to the fourth parent with us today, Mr. Himanshu Sahu, father of Divyanshu Sahu, a student of St. Paul's School, Rourkela. And last but not the least, Mr. Mukesh Gupta, father of two children studying in Carmen School. I feel that your experience and all your expertise will help us a lot. Thank you for joining, ma'am. Now I would like to ask Monalisha ma'am to continue with this. Thank you, ma'am. Thank you, Abhishek, for welcoming all our panelists, and I hope we will have an amazing time learning with each other during this coming 1 hour. And I would like to start our first question, and the first question goes to all our parents. And मैं अभी बाकी का कॉन्वर्सेशन हिंदी में रखूँगी ताकि जो भी हमारे ऑडियंस जो सुनेंगे उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए एंड सबको ही समझ पाएँ बेसिकली. सो पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 बीमारी के कारण हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बहुत सारे बदलाव हुए हैं. इस विषय में एज अ पेरेंट आपका अनुभव कैसा रहा है? सो अगर आप शेयर कर सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पास्ट फ्यू मंथ्स जब से कोविड-19 हुआ है, सो दैट हम अपना कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा पाएं. Of course, Monalisa, I can share it. It was a beautiful experience as a parent. क्योंकि पूरा एकदम शटडाउन के दौरान बच्चे सब घर पे ही थे और कुछ ऐसा भी माहौल बना कि हस्बैंड भी वर्किंग पूरा लिमिटेड करके वो भी पूरा होम पे टाइम दे रहे थे. तो हमने वो टाइम एक हॉलीडे टूर जैसा ही बिताया.
जिसमें कि पूरा एकदम एक साथ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब चीज हो रहा था। और बच्चों के पास पहले तो एकदम हम लोग के लिए टाइम बहुत लिमिटेड था, क्योंकि उनके स्कूल्स थे, ट्यूशंस थे, उनके अपने प्रोजेक्ट्स थे, तो कम्युनिकेशन हम लोग का बहुत कम हो जा रहा था। हम लोग चाह के भी उनसे उतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत लिमिटेड हो रहा था। लेकिन इस दौरान हम लोग का बहुत अच्छा से कम्युनिकेशन हुआ। बच्चे खुल के अपने एम्स और अपने एम्बिशियस जो भी एम्बिशंस है सब खुल के डिस्कस किए। हमने अपने राय भी उनसे पूरे खुल के शेयर किए। हमने बहुत मस्ती किया, हमने बहुत इंडोर गेम्स भी खेले, और सबके साथ एकदम हेल्दी डाइट भी चल रहा था। ऐसे बोला, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक हॉलीडे ट्रिप, ब्यूटीफुल हॉलीडे ट्रिप विथ ए होम मेड हेल्दी डाइट। तो बहुत ही खूबसूरत अनुभव ये रहा है। जी मैम, थैंक यू कि आप एक ऐसा भी पहलू बता रही है जहाँ पे हम एज अ फैमिली आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम इस तरह से साथ में समय बिता पा रहे हैं। एंड एज अ फैमिली भी ये एक कहीं ना कहीं मौका बन गया कि हम एकजुट होके एक साथ होके समय बिताएं। एंड ये एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है इस समय का, चाहे इवन दो दुनिया भर में लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टिल दिस इज़ अ लाइक मोमेंट जहाँ पे हम कहीं ना कहीं एक साथ मिलके एंजॉय कर रहे पूरी हो गया। हैं। जी, थैंक यू मैम। एंड अभी मैं संजुक्ता मैम को पूछना चाहूँगी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। गांव गांव में, शहर शहर बोलिए, और देखे तो आप देश विदेश में भी बदलाव आ गया है, बहुत सारा बदलाव आ गया है। और एजेड पर्सन से लेके बच्चे के तक भी घर में रहते हैं, बाहर घूमना फिरना बंद हो गया है। उनका थोड़ा बाहर घूम के जो एंटरटेनमेंट करते थे वो भी बंद हो गया। जी मैम। हाँ, और ज्यादा जो बच्चे तो हम लोग के साथ बहुत टाइम देते हैं, लेकिन उनका जो ज्यादा बड़ा बदलाव आया है वो है स्कूलिंग लाइफ। वो स्कूलिंग लाइफ को बहुत मिस कर रहे हैं। वो जो सुबह सुबह उठते थे और एक टाइम टेबल मेंटेन करते थे, वहां जाके जो फादर्स और टीचर्स उनको गाइड करते थे, उनका जो मेडिटेशन, प्रेयर, मोरल नॉलेजेस गेन करते थे, और उनका टाइम टू टाइम क्लासेस होता था, रेमिडियल होता था, और मेडिटेशन, एडुकम क्लासेस, वो सब मिस करते थे। अभी मिस कर रहे हैं। और हम जितना भी करते हैं वो सब, मेडिटेशन भी कराते हैं, एक्सरसाइज भी कराते हैं, लेकिन उसका रेगुलरिटीज नहीं रहता है। फादर इतना सुंदर सा टाइम टेबल दिए हैं, लेकिन बच्चे, मेरा एक बेटा भी क्लास 1 में पढ़ता है अननोन में, 2 बच्चे हैं अननोन में, लेकिन उनको मेडिटेशन और एक्सरसाइज पढ़ाई का टाइम टेबल में कराते हैं, लेकिन स्कूल के हेड्स अप टू फादर्स एंड टीचर्स कि हम उनकी तरह नहीं कर पा रहे हैं। और बच्चों में जहाँ भी देखे कि जितना उनको इंडोर गेम्स से हम एंटरटेनमेंट कराते हैं, बुक्स ला के देते हैं और उनके साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं, लेकिन उनका एक उदासी है उनका मन में, जहाँ की वो मिस कर रहे हैं अपना स्कूल को, अपना फ्रेंड्स का, अपना टीचर्स को, अपना फादर्स, इन सब को बहुत मिस कर रहे हैं। ये मायूसी उनका दिल में है, जो कि प्रे कर रहे हैं कि भगवान ये स्कूलिंग लाइफ उनको जल्दी से जल्द दे दे। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू संजुक्ता मैम। आप और एक पहलू भी हमें बता रही है जहाँ पे बच्चे स्कूल जाना मिस कर रहे हैं, अपने टीचर्स, एंड एक स्ट्रक्चर में जो रहते हैं, रूटीन में जो रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिस हो जा रहा है। इवन दो हमारे टीचर्स इतना मेहनत कर रहे हैं अपने साइड से वापस से वो रूटीन और स्ट्रक्चर लेके आ पाएँ, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मिस हो जा रहा है। तो ये और एक पहलू है ये पैंडेमिक के टाइम पे, एंड ये सारे स्ट्रगल्स भी है बोथ बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। थैंक यू मैम। तो मैं अभी चाहूँगी कि हम मिस्टर राज साहू उनसे उनका अनुभव समझें और एज अ पेरेंट उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। Thank you, Monalisa. And already Plavani ma'am and Sanjukta ma'am has already discussed a lot of things. मैं थोड़ा सा, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, बट कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू मेक इट ये। यस, हमारा इनिशियल अराउंड द फर्स्ट 14 डेज ऑफ लॉकडाउन जो था वो तो बहुत ही अच्छा था।
मैं भी खुश था, चलो 14 डेज सबको छुट्टी मिल गया, कुछ मत करो, घर में बैठो, काम भी कम करो, ये करो. बट व्हेन अगेन इट वाज अगेन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 21 डेज, बोले ठीक है चलो और कुछ दिन मिल गया. उसके बाद में आस्ते आस्ते जब पड़ा लॉकडाउन बढ़ते गया इस पैंडेमिक में, कि बच्चे लोग भी थोड़ा परेशान, दे ऑल स्टार्टेड. एंड मेरा जो बड़ी वाली बेटी है, शी वाज अपीयरिंग 12th एग्जामिनेशन, का एक पेपर बच गया था, तो वो टेंशन में था, पापा मेरा कब क्या होगा, ये होगा. मेरा बेटा जो है, ही इन क्लास 6, वो उसका टेंशन था कि कैसे कोप अप करेंगे, स्कूल कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे. बट somehow the first month is gone. Then again second month onward, जब स्कूल से जब ऑनलाइन क्लासेस उनका स्टार्ट हो गया, इनिशियली इट वाज क्वाइट गुड. मतलब सब कोई टेंशन में थे कि रेडी होके बैठना है, ये करना है, वो करना है. एंड आफ्टर दैट कि उनका टाइम मोस्टली जो था कि एंगेज कैसे रखना, दैट वाज बिग चैलेंजेस फॉर मी एज वेल विद माय वाइफ. खाना सबको दे रहे हैं, खाना बना के दे रहे हैं, बट टाइम नहीं कट रहा था. दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम इन द होम्स. My elder daughter, she was architect, was when she had come, she had joined one farm, but again उसको भी घर से काम करने का है, तो she walked from late night. तो इन लोग भी रात को लेट नाइट तक के मस्ती करते थे all. तो all the timetable got changed. Timetable totally change हो गया. That is one big changes what we face. And कुछ दिन का बाद में again continue हुआ. And the most difficult part till now जो हो रहा है वो घर में कि the how to engage these kids the whole time. Otherwise वो परेशानी में रहते हैं. This all. But thanks to the school that they planned beautifully the all classes and all online basis में. But उनका जो टाइम टेबल जो चेंज हो गया है बच्चे लोग का, I don't know when the school will start. So और एक बार उनको वो जो सिस्टम में लाने के लिए इट विल बी ए बिग प्रॉब्लम. मेरे को लगता है थोड़ा दिन हमको भी प्रॉब्लम होगा वो ये. एंड बाकी तो ऑलमोस्ट सबके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन था बीइंग ए पेरेंट. आई रन ए सॉफ्टवेयर कंपनी एंड कंसल्टेंसी फर्म, बट वहाँ पे मेरे स्टाफ लोग को देखना है ऑनलाइन, हम लोग का भी वहाँ क्लासेस चल रहा है. एंड मेंटेनिंग द ऑल थिंग्स कमिंग फ्रॉम द ऑफिसेस टू अगेन कम बैक टू होम्स, यहाँ पे टेंशन था ये में है. बट नाउ वी हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड द होल थिंग्स. अभी बहुत सारे चीज़ हम लोग आस्ते आस्ते सॉल्व कर रहे हैं. होप फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर्स. एंड चैलेंजेस तो है, इस पेंडेमिक हैज टॉट अस लॉट ऑफ थिंग्स, जो बहुत सारे चीज़ हम लोग को सिखा दिया है जो हम लोग पहले वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. बीइंग पेरेंट्स वी आर मोर क्लोज टू द किड्स, उनका हर एक चीज़ को जान पाए जो बहुत कम हम लोग जानते थे कि चलो स्कूल जा रहे हैं, आने के बाद में कुछ ट्यूशन पे चला गया, कहीं जा गया. तो नाउ द थिंग्स दे आर ऑल 24/7 दे आर इन द होम्स. तो उनका जो मेन पार्ट है उनको एंगेज करना है, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिलमेंट करना है. मैम ऑलरेडी प्लाबनी मैम, संयुक्ता में जो खाना पीना का है, होल डे प्लानिंग चलते रहता है, आज क्या खाना है क्या नहीं खाना है. दीज आर ऑल प्लानिंग्स आर गोइंग ऑन. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. आपका भी एक्सपीरियंस हमको ये भी सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आगे क्या, आगे जब स्कूल खुलेगा जी तो कैसे करेंगे, फिर कैसे वो रूटीन को फिर रीएस्टैब्लिश कैसे में होगा. अभी तो पूरा फुल फ्लेज उसमें जा रहे हैं. बट अभी ये सिचुएशन ऐसे हो गया, सपोज ऑनलाइन क्लासेस अगर 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो दे जनरली वेक अप एट 8:45 और 8:50, वैसे उठ के थोड़ा सा फ्रेश हो गए, कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठ के क्लासेस कर दे रहे हैं. मतलब पापा हो जाएगा ना, मैं बैठूंगा. मतलब नहीं 1 घंटा 2 घंटा पहले तो उठो, कुछ प्रिपरेशन करो. होल नाइट दे यूज्ड टू डू इट. एंड क्लास स्टार्ट होने का 10-5 मिनट पहले दे यूज्ड टू कम आउट. दे वोट एक आ गया उनमें जी. सो ये और एक हमारे लिए चैलेंज है. एंड आई होप सो कि हमारे जो एक्सपर्ट्स जो हमारे पास हैं अभी, फादर डैनियल एंड मिस आकृति, हमें थोड़ा तरीका बताएं कि आगे कैसे हम इस चीज़ को मैनेज करेंगे. एंड सॉल्यूशंस की और हम आगे थोड़ी देर में हम इस बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे. अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस्टर मुकेश को कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें एज अ पेरेंट, कैसा रहा है अभी तक का जर्नी, अभी जो पैंडमिक चल रहा है उससे रिलेटेड कैसा रहा है उनका जर्नी एज अ पेरेंट.
शुरू में तो काफी तकलीफें हुई हमें। ये एक नया नॉर्मल हो गया हमारे लिए। पूरा ही हमारा डेली रूटीन, दिनचर्या हमारी बदल गई कि अब हमें दोनों तरफ एज ए पेरेंट नो वी हैव टू गो ड्यूटी, एक ड्यूटी पे जाना है, वो अब घर पे ऑफिस आ गया। अब हमारा तो शुरू में काफी तकलीफ, घर में ऑफिस आ गया और हमें तो ये लगने लगा, एक्चुअली सही मायने में देखा जाए तो हमें ये पता लगने लगा कि हम लोग अब बच्चे के डोमेन को हम पेनिट्रेट कर रहे हैं। वो बच्चे के जो उनका अपना पर्सनल स्पेस है, अब हमें लगने लगा कि हम उन पे घुस रहे हैं। शुरू में तो यही लगा, एंड विथ टाइम तब हमें लगा कि नहीं, उनका डोमेन अपना है, हमारा डोमेन अपना है, एंड एक बीच का हम दोनों अपने अपने डोमेन पे अभी आ गए हैं। सबसे बड़ी सीखने को एक चीज हमें मिली वो ये कि हमें स्कूलों की काफी इंपॉर्टेंस पता चल गई कि जब हमें बच्चों को 4 घंटा 5 घंटा रखने में इतनी तकलीफ हो रही है, तो स्कूल में एक शिक्षक, एक टीचर कैसे उसे एंगेज करके रखता है। तो ये एक दर्शाता है कि टीचर, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो तो समझ में आता है कितनी तकलीफ वाली बात है। बट जैसा सभी ने कहा, ये हमारे साथ धीरे धीरे खुद को एक सीखने का मौका मिला। बच्चों को हम सिखा रहे हैं, अब हम शिक्षकों का एक रोल ले रहे हैं जो शिक्षक कर रहे हैं। और ये शायद सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये इतना आसान नहीं है कि एक बच्चों के साथ, आज भी ये एक फैक्ट है कि कहीं हम बच्चों को कहते हैं ये करो बेटा, ऐसे करना चाहिए, वो कई बार नहीं मानते हैं। पिताजी तो पिताजी है, मान जाएंगे। हमें यही शिक्षकों का हेल्प लेना पड़ता है कि देखो हम तुम्हारी टीचर से कहेंगे, और टीचर के लिए उनके दिल में इतना इज्जत होता है कि हम कहेंगे नहीं मानेंगे। शिक्षक का नाम लेंगे कि टीचर ये कहेंगी तो वो तुरंत कर जाएंगे। हम कहेंगे ए फॉर एप्पल होगा, शायद ना माने, पर शिक्षक कहें कि ए फॉर एप्पल तो मान जाएंगे। ये एक ऐसा गैप है जिसको हम कभी फुलफिल नहीं कर सकते एज ए पेरेंट। बट ये एक नया नॉर्मल है, हम सीख रहे हैं, और सभी ने जैसे सीखा हम भी सीख रहे हैं, और शायद ये गैप को फिल करना संभव नहीं है। बट कोशिश जारी है, हम भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट है वो शायद हमें ज्यादा इनलाइटन करे कि कैसे और इसको हैंडल करे, कैसे एक पेरेंट एक शिक्षक की जगह को फुलफिल कर पाए। तो हम भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं। जी थैंक यू सर। आप इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया, एंड इसके लिए हम एक चीज़ भी सीख रहे हैं कि कैसे हम जो न्यू नॉर्मल है उसमें कैसे हम एडजस्ट करें, कैसे हम इवन दो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो जब घर पे हैं तो घर पे वो पढ़ाई को हम कैसे कैरी आउट कर पाएँ, या फिर वो जो रूटीन है, जो एवरीडे लाइफ का जो हमारा पहले का जो रूटीन था उसको घर पे ही रह के कैसे हम उसको मैनेज करें, वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप कि हमें इसका आंसर पूरा 100% तो नहीं, एटलीस्ट 50% हमें मिले आज के सेशन से, वही हमारा होप है। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारे साइकोलॉजिस्ट के लिए होगा, एंड मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि जब से कोविड-19 बीमारी मतलब दुनिया भर में फैल गई, एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास पेरेंट्स और बच्चे अभी भी आपके साथ बातचीत करते होंगे, तो आपके पास किस तरह का वो परेशानियाँ एंड स्ट्रगल्स वो आपके पास लेके आते हैं, वो थोड़ा हम जानना चाहेंगे, बोथ पेरेंट के पहलू से और बच्चों के तरफ से भी किस तरह के स्ट्रगल्स आपके पास वो लेके आ रहे हैं। एंड मैं फादर जोसेफ डैनियल को रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले वो शेयर करें, एंड देन मिस आकृति वो शेयर कर सकते हैं। मोनालिसा, थैंक यू, धन्यवाद मुझे यह न्योता देने के लिए, ये कुछ बातचीत करने के लिए कि किस तरह से हम ये जो पैंडेमिक है इसमें अपने बच्चों की और खुद की देखभाल कर सकें। तो पहला जो प्रश्न मुझे दिया गया उसका उत्तर मैं यही दूंगा कि हम लोग के देश में हम लोग साइकोलॉजिस्ट पाने के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर उनके पास गए तो लोग हमें पागल समझने लग जाएंगे या कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी है, इसलिए लोग आना नहीं चाहते हैं। ये जो 6-7 महीने हुए उसमें
बहुत कम ही पेरेंट्स लोग मुझसे कंसल्ट किए हैं। हालांकि मैं रोज स्कूल में बैठता हूँ लेकिन कोई नहीं आता है, बहुत कम। 2-4 जो लोग आए हैं उनका ही मैं उनके बारे में बातचीत कर सकता हूँ, और वो उनमें जो है बातचीत के द्वारा उन्होंने मुझसे जो कहा है उसमें कहते हैं कि एक जो सबसे बड़ी तकलीफ है उनकी डिसिप्लिन की। जैसे कि अब ये जो अभिभावक बोले हैं कि कैसे उन लोग को एंगेज करना घर में, टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं, जो सिखाते हैं वो भी सुनने नहीं मांगते हैं, तो वो एक डिसिप्लिन का प्रॉब्लम आ गया है घर में बच्चों के लिए, और माता पिता उसे देख रहे हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा जो माता पिता के सामने जो एक और पहलू है वो है कि स्क्रीन टाइम। जो पहले हम लोग बोलते थे कि टीवी मत देखो, मोबाइल मत पकड़ो, अभी वही की वही सबसे ज्यादा अहम बन गया है ना, टीवी के या फिर मोबाइल के सामने रख के वो क्लास। लेकिन बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के पास समय नहीं है देखने के लिए ना। तो एक वो है स्क्रीन टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना, वो एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और तीसरी बात जो है, बच्चे लोग घर में बैठ कर, कम से कम एक पेरेंट ने मुझसे कहा कि छोटे बच्चे भी अग्रेसिव हो गए, अंदर बैठ कर शायद घर में बैठे हैं या एक ही तरह का माहौल बन गया है, माँ बाप को देखना हर समय, भाई बहन को देखना, बाहर जाने की चांस बहुत कम हो गई है, शायद अग्रेसिवनेस भी उनके अंदर ज्यादा आ गया। तो मेरे अनुसार ये तीन बातें हैं जो पेरेंट्स के द्वारा मुझे मालूम हुई है। एक तो है डिसिप्लिन का प्रॉब्लम, दूसरा है स्क्रीन टाइम को कैसे मैनेज करना है, और तीसरा है अग्रेसिव बिहेवियर है। ये 3 मैं देख रहा हूँ। थैंक यू। Thank you, Father, for such a valuable experience sharing. And certainly हमारे बच्चे एंड पेरेंट्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। वो जो स्क्रीन टाइम, जैसे फादर बोल रहे हैं, एग्रेसिव बिहेवियर एक जो हो गया है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं घर से। पहले जैसे फिजिकल एक्टिविटी होता था वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया है। सो वो फिर एग्रेशन के थ्रू वो निकलने का कहीं ना कहीं हो रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं एक तरह से घर का माहौल भी थोड़ा सा ट्रबलसम माहौल हो जा रहा है। सो ये कुछ स्ट्रगल्स बोथ हमारे बच्चे एंड पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। थैंक यू फादर फॉर शेयरिंग। एंड अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस आकृति से कि वो शेयर करें उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। Firstly, I would like to thank Mona Lisa for inviting me for this discussion. And अगर मैं बात करूं कि इस पैंडेमिक का क्या इम्पैक्ट रहा है बच्चों पे, पेरेंट्स पे, फैमिलीज पे एज अ होल यूनिट, तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये पैंडेमिक एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें फैमिलीज का पूरा जो एक सॉर्ट ऑफ फंक्शनिंग है वो इम्पैक्ट हुई है। जैसे पेरेंट्स के लिए एक वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है, अब जैसे पेरेंट्स घर से ही काम कर रहे हैं तो उनको घर में अपना टाइम भी मैनेज करना है अपने काम के प्रति, और उसी के साथ साथ अपने बच्चों को भी सपोर्ट करना उनकी ऑनलाइन क्लासेस में। उसके बीच में फिर उनको अपना घर का बाकी काम भी करना है। तो पेरेंट्स के लिए स्पेशली एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो क्रिएट करना और मैनेज करना, वो काफी लर्निंग प्रोसेस रहा है, जिसमें शुरू में उनको काफी दिक्कत आई। एंड उसी के साथ साथ बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का जो एक सिस्टम है वो एकदम अलग है, क्योंकि क्लास में एक जब पर्सनल इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ, बाकी बच्चों के साथ, वो लर्निंग, वो साथ में टुगेदरनेस बहुत अलग होती है। एंड ऑनलाइन क्लासेस के उसमें बहुत अलग सिस्टम होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत दिक्कत आ रही थी कि जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के ड्यूरिंग बैठ नहीं पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनका काम करने का मन नहीं है, उनका होमवर्क करने का मन नहीं है, एंड उनको हम कैसे सॉर्ट ऑफ कंसंट्रेट कराएं क्लासेस के ड्यूरिंग। एंड एक जो चीज जो बच्चों ने ज्यादा जो आई कि जो बच्चों को बहुत इम्पैक्ट की, वो ये है कि एक लैक ऑफ रूटीन और स्ट्रक्चर। जैसे जब बच्चों का नॉर्मल दिनचर्या में उनका एक रूटीन होता है कि इतने बजे उठना, इतने बजे स्कूल जाना, वापस आना, खाना खाना, होमवर्क करना, खेलने जाना, और अभी इस सिचुएशन में क्या है, वो रूटीन और वो जो स्ट्रक्चर है
वो एकदम चला गया है। एंड उससे कहीं ना कहीं बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि घर पे एक तो पूरा टाइम रहना, उसके बाद एक वो पूरा क्लासेस का टाइम शिफ्ट हो जाना, बाकी जो एक सॉर्ट ऑफ इंटरपर्सनल सोशल कांटेक्ट होता है उसकी कमी होना, और अपने टीचर से इन पर्सन नहीं मिल पाना, दोस्तों से इन पर्सन नहीं मिल पाना, तो कहीं ना कहीं चीजें हैं ये भी बच्चों पे बहुत असर करी है। एंड उसी के साथ साथ एक जो चीज जो आई है, जो मैंने देखा है, जो पेरेंट्स के लिए काफी कंसर्न रही है, वो है फाइनेंशियल कंसर्न्स। एक सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जो कि भी फैमिलीज को बहुत इम्पैक्ट की है, स्पेशली कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे सैलरी कट हुआ है या जहाँ पे जॉब लॉस वगैरह हुआ है, तो उससे भी पूरी फैमिली पे, उनकी आर्थिक स्थिति पे, भले वो क्लासेस अटेंड करना हो कि वो क्लासेस अटेंड कर पाए कि नहीं, या मैनेज कैसे कर पाए, उस पर भी बहुत फर्क पड़ा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इस समय पे काफी उभरी हैं। और उसी के साथ साथ एक जो बहुत पॉजिटिव चीज रिफ्लेक्ट किए हुई है वो ये है कि पूरे परिवार एकजुट होके कोशिश किया है कि इस सिचुएशन को हम साथ में कोप करें। तो कहीं ना कहीं फैमिलीज ने एक दूसरे को सपोर्ट करके और रिजिलियंटली ये कोशिश की है कि जितना भी हो पाए वो बेस्ट से बेस्ट हम अपने को भी संभालें और बच्चों को भी संभालें, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज भी इस सिचुएशन में हो। तो ये कुछ इनपुट्स थे मेरे साथ। थैंक यू सो मच मिस आकृति फॉर शेयरिंग इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक रेजिलियंस का जो बात बोला वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले क्या होता था, सबका रूटीन इतना स्ट्रिक्ट हो गया था कि वो जो रेजिलियंस मतलब कि एकजुट एक साथ रहने से एक जो बॉन्डिंग जो डेवलप होता है, जो हमें हर तरह का लाइफ का चैलेंज फेस करने में हेल्प करता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और अभी का समय हमें फोर्स कर दिया कि हम उस चीज़ों पे हम ध्यान दें, अपना मेंटल हेल्थ, अपना इमोशनल हेल्थ, ये सारी चीज़ों पे हम फोकस करने शुरू करें। ये इस टाइम का एक तरह का इनपुट मैं बोलूँगी अभी के इस पैंडमिक के टाइम पे। थैंक यू सो मच मिस आकृति फॉर शेयरिंग। एंड अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस्टर हिमांशु साहू, प्लीज़ आप शेयर करिए कि एज अ पेरेंट इस पैंडमिक के टाइम में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मेरे ख्याल से अभी कम्प्लीटली रोल रिवर्सल हो गया है। जैसे हम लोग पहले जो हमारा रूटीन वर्क रहता था, घर का काम घर में चलता था, अभी ऑफिस का काम करना है, फिर कुछ उसके बाद घर का काम करना है, और उसके बाद उसका पढ़ाई, बेटे का पढ़ाई वगैरह भी देखना है। तो शाम तक, आज पहले इतना थकते नहीं थे, आज तक थक जाते हैं। अभी उल्टा क्या हो गया है, बेटा पहले थक जाता था, जैसे सुबह स्कूल जाना, आके खेलना, दोस्तों से बात करना, फिर रात का पढ़ाई करना, शाम तक वो थक जाता था। अभी उल्टा हो गया है, ये लोग अभी थकते नहीं है। काफी एक्टिव होते हुए भी ये लोग थकते नहीं, क्योंकि उनका दिन भर का वही ऑनलाइन क्लासेस में रहना, मोबाइल गेम्स में एंगेज रहना, तो उसमें वो थकावट नहीं आते। जब थकावट नहीं होती है तो उनका सोने पे भी वो इफेक्ट आ रहा है। ठीक, वो काफी देर तक मैं देख रहा हूँ वो जागते रहता है, वो सोता नहीं है। तो अभी वो एक चैलेंज बना हुआ रहता है कि जब उल्टा हम लोग थक जाते हैं, जबकि हम थकते नहीं थे और वो थक जाते थे। अभी उल्टा हो गया है पैंडेमिक के टाइम पे, हम थक जाते हैं शाम तक, पर वो थकता नहीं है, और जब थकता नहीं है तो सोता नहीं है ठीक से, और उसका असर अभी दिखने लगा है, कंप्लीट असर वो दिखने लगा है, क्योंकि वो बाहर खेलने नहीं जा पा रहा है। तो सारे बच्चों के साथ यही है। उनका मेन यह है कि अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस, उन लोगों को कुछ देर डेफिनेटली आउटडोर खेलना है या फिर साइकिलिंग करना है, वो नहीं कर पा रहे हैं। कभी रिश्तेदारों को थोड़ा घूमने जाना है, कहीं कोई एक जगह देखने जाना है जो नॉर्मली समर वेकेशन में होता है, वो कुछ नहीं हो पा रहा है। उसके चलते उनका वो प्रेरणा बनाए रखना वो मुश्किल हो रहा है। थैंक यू सर, हमें ये बताने के लिए कि रोल रिवर्सल भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड एक जो बैलेंस जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अभी के टाइम पे। एंड ऑफ कोर्स सबको यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं वापस वो न्यू नॉर्मल में एक न्यू बैलेंस क्रिएट करने का। वो उस मैटर पे हमें फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है। सो थैंक यू सर फॉर शेयरिंग। एंड अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना चाहूँगी। अगेन हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो दो मदर्स हैं उनके द्वारा, एंड देन वी कैन हम पूछेंगे फादर्स को कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है
वो कुछ इस तरह है कि जब से लॉकडाउन हुआ है और स्कूल बंद कर दिया गया है, क्या आप एक ऐसे पहलू के बारे में हमें बता सकते हैं जिसको आपको बहुत ही चुनौती भरा लगा हो? एज अ पेरेंट बच्चों को हेल्प करना, मैनेज करना, गाइड करना, इस एस्पेक्ट में कौन सा एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत ही चुनौती भरा लगा है इस समय पे? कोई एक एस्पेक्ट, उसके बारे में हम लोग सुनना चाहेंगे। सो यस मैम, प्लावनी मैम। यस ऑफ कोर्स मोनालिसा, ये तो एक चुनौती भरा शुरुआत ही था शुरू से ही। तो बच्चे लोगों का रूटीन जैसे चल रहा था स्कूल में, ठीक हमको वैसे लेके जाना था। दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। तो मुझे पूरा सेम टू सेम वही रूटीन उन लोगों का मेंटेन करना था। तो शुरुआती फेज में थोड़ा मुझे परेशानी हुआ, क्योंकि छुट्टी है, अब स्कूल नहीं है, तो बच्चे उठने में खिचखिच। लेकिन रूटीन, एक डिसिप्लिन लाइफ, इधर उधर, कल को तो स्कूल खुलना ही है, एक ना दिन तो स्कूल खुलेगा। तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चों का आदत पड़ गया। मैंने अपना रूटीन एकदम डिस्टर्ब नहीं किया, ना ही मेरे हस्बैंड ने अपना रूटीन डिस्टर्ब किया। तो बच्चों ने भी मजबूरी, मम्मी पापा को देख रहे हैं वही सेम रूटीन चल रहा है, सेम टाइम पे उठना, तो बच्चों ने भी फॉलो किया हमें। थोड़ा शुरुआती तौर पे थोड़ा किचकिच पिच, लेकिन उसके बाद फिर उठने लगे, टाइम पे उठने लगे। जैसे ब्रेकफास्ट जो टाइम में खाना है वही टाइम पे ब्रेकफास्ट खाना है, किताब जो टाइम में पकड़ना है वो टाइम पे किताब पकड़ना है। तो वो सब चीज का ध्यान रखना सबसे बड़ा पहलू था। काम के एक तरफ घर के काम और एक तरफ बच्चों को पूरा फोकस देना था, क्योंकि लंबा लॉकडाउन था। कहीं बच्चों का ये जो सिस्टम है इधर उधर ना हो जाए, जो श्रृंखला वाला एक तो सिस्टम है, डिसिप्लिन वाला लाइफ है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, उसका खास ध्यान रखा। और जो टेस्ट जो ये लोग ने दिए सब, तो टेस्ट पे हम लोग का पूरा फोकस रहा। कोई ना कोई पेरेंट्स, हम दोनों में से कोई एक जन हम लोग रहते थे कि उनको वो स्कूल वाला फीलिंग रहे कि हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ हमको टेस्ट देना है। वही सेम पढ़ाई, जितना टाइम ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है उसके बीच में नहीं उठना है, स्कूल ड्रेस पहन के बैठना है, टीचर को ध्यान से सुनना है। तो वो सब चीज थोड़ा सा हम लोग को गाइड करने में थोड़ा शुरुआती तौर पे थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन फिर सिस्टमेटिकली सब अभी चल रहा है। फाइन। थैंक यू मैम कि आप ये हमें बताएं कि वो जो मेंटेन करके रखना, वो जो स्ट्रक्चर, रूटीन, रिदम, वो एक स्ट्रगल आपके लिए रहा है। नहीं, स्ट्रगल नहीं मोनालिसा, बोला जाए तो ये एक तो न्यू एक्सपीरियंस हर हाउसवाइफ के लिए था। ये एक न्यू एक्सपीरियंस था जो बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ है। ओके। सो हम थोड़े ही देर में मैम से उनका सीक्रेट्स भी पूछेंगे, जो उनको हेल्प किया है वो स्ट्रगल, जो इनिशियली जो स्ट्रगल था उसको ओवरकम करने में जो वो हेल्प करे हैं उनको, तो हम वो पूछेंगे अभी थोड़ी देर में। ओके। सो संजुक्ता मैम, अगर आप शेयर करेंगे आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है एज अ पेरेंट? यस मैम। यस। अभी जो सबसे बड़ा टॉप चैलेंज है मेरे लिए वो है कि हम स्कूलिंग लाइफ को कैसे घर में वो लाइफ हम बच्चों को दे। स्कूलिंग लाइफ जो उनको ज़्यादा उनको रिलैक्सेशन देता था और ज़्यादा बच्चे शेयरिंग करते थे उनका फ्रेंड्स के साथ। अभी मदर के साथ शेयरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शेयरिंग करते हैं। और वहाँ पर एक जो सब एक्टिविटीज़ होता था, फिजिकल एक्टिविटीज़, सीढ़ी चढ़ के जाना, फिर स्कूल में दौड़ना और मेडिटेशन बहुत सारा होता था। वो सब हम ट्राई कर रहे हैं कि एक टीचर का रोल भी करें, लेकिन टीचर का रोल, टीचर तो नहीं बन पाएंगे लेकिन ट्राई कर रहे हैं। वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे सबको मैनेज कर पाएंगे। उसके साथ एक मदर का रोल भी करना है मेरे को। और जैसे ऑफिस भी घर में हो गया है थोड़ा, और घर में पढ़ाई भी होना है। ऑनलाइन क्लासेस होता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में बच्चे कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं ये देखना भी जरूरी है। इसके लिए पूरा टीचर का रोल भी करना जरूरी है कि हम कैसे उनको स्कूलिंग लाइफ दे घर में। ये मेरे लिए सबसे टफ चैलेंज है अभी है, और ये जंग जारी रहेगा लग रहा है। और बच्चे भी अभी
एडजस्ट हो गए ऑनलाइन क्लासेस में, एडजस्ट हो गए और टेस्ट भी दे रहे हैं और ऑनेस्टली दे रहे हैं, और टीचर लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत वीडियो बना रहे हैं, बच्चों में बहुत इम्प्रूव भी हुआ है। लेकिन वो स्कूलिंग लाइफ थोड़ा देंगे कि बच्चे थोड़ा रिलैक्सेशन दे, उनमें थोड़ा वो खुशी हो, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। थैंक यू मैम, आप ये शेयर किए कि बच्चों के लिए जो स्कूल लाइफ को कॉम्पेंसेट करना घर पे, वो एक आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। एंड आगे भी आई थिंक कुछ समय तक ये चैलेंज रहेगा। सो ऑफ कोर्स हम अपने साइड से कुछ ना कुछ तरीके यूज़ कर रहे हैं कि वो गैप जो हो गया है उसको हम फिल कर पाएँ, बट स्टिल इट्स समवेयर इट्स अ चैलेंज, अभी भी एक चैलेंज है। ओके, थैंक यू मैम। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस्टर हिमांशु सर उनसे कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि एज अ पेरेंट आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या रहा है अभी तक। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि उसका मोटिवेशन बनाए रखना, क्योंकि पहले कुछ दिन जब स्कूल्स बंद हो गए तो ठीक है, वो समर वेकेशन कुछ अप्रोच करने वाला था, वैसे भी छुट्टी होता है, कुछ वो लोग रहते हैं खेलकूद में व्यस्त रहते हैं। पर उसके बाद जब स्कूल बंद हो गए और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए, उस दिन तो ठीक ठाक चला, वो इंटरेस्ट, ही वाज टेकिंग इंटरेस्ट टू अटेंड द क्लासेस, बट ग्रेजुअली आई ऑब्जर्व दैट ही इज लूजिंग मोटिवेशन। उसमें उतना और उत्साह नहीं है वो क्लास अटेंड करने के लिए। जैसे पहले स्कूल में जाते थे, मस्ती करते थे, पढ़ाई करते थे, सब कुछ करके कुछ होता था स्कूल में, लगता था कुछ हो रहा है, आके बताता था आज ये हुआ। अभी स्कूल के बाद कुछ पूछे तो ऐसा एक इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि आज हाँ अच्छा कुछ सीखने को मिला। हाँ, क्लास अटेंड किया, लर्न, बट वो जो मोटिवेशन पहले का होता था, जो उत्साह उसमें था, आजकल मैं देखता हूँ वो नहीं है। हालांकि जो भी क्लासेस हो रहे हैं उसमें रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अंदर से जो आना चाहिए कि हाँ कुछ सीखने को मिलेगा, फिर अगले दिन के लिए प्रिपेयर करेंगे, कुछ और सीखेंगे, वो नहीं है। शुरू में कुछ दिन उसको मोटिवेशन बनाए रहा, कुछ एक्टिविटीज में फिर पार्टिसिपेट किया, हम कोशिश किए उसका मोटिवेशन बना रहे, लेकिन देख रहा हूँ कि वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको कंटिन्यूअसली कितने दिन तक ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए उसका मोटिवेशन बनाए रखें, वो एक बड़ा चैलेंज है। थैंक यू सर, ये थैंक यू सर, ये रियली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बच्चों का एंड पेरेंट्स का वो मोटिवेशन को बनाए रखना। वो चैलेंजेस जो भी हम फेस कर रहे हैं या फिर इवन स्टडी रिलेटेड जो बैलेंस जो क्रिएट करने का जो हम ट्राई कर रहे हैं, ये प्रोसेस में वो मोटिवेशन लेवल को बनाए रखना, मेंटेन करके रखना, वो एक हमारे लिए चैलेंज रहा है। सो थैंक यू सर, एंड आई रिक्वेस्ट नाउ कि अभी मुकेश सर हमसे शेयर करें कि एज अ पेरेंट उनके लिए क्या चैलेंजिंग रहा है अभी तक। हमारी समस्याएं तो वही है जो दूसरे पेरेंट्स ने जो बयान किया, मोरलेस वैसा ही है। एक सबसे बड़ा जो हम देखते हैं वो ये कि एक तो डिसिप्लिन की बात है, जैसे साइकोलॉजिस्ट ने कहा, बच्चे स्लोली डिसिप्लिन लूज कर रहे हैं। एक टाइम टेबल मेंटेन करना कि हाँ एक टाइम पे खाना, टाइम पे खेलना, ये नहीं हो पा रहा है। ये हम चाहते हैं करने की कोशिश करते हैं, बट ये संभव नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन मैनेज है, डेली बेसिस से मेंटेन नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो टीचर्स का जो वॉइड जो क्रिएट हुआ है वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो सोशल एक्टिविटीज है, फिजिकल इंटरेक्शंस है, फिजिकल एक्टिविटीज है, ये टोटली मिस आउट हो गया है। हम जो ऑनलाइन चैट ग्रुप्स है, वीडियो है, जूम है, टीम है, इससे हम बातें करवा देते हैं, दोस्त आपस में बात कर लेते हैं। बल्कि हमारी वाइफ ने जो है इनके कुछ दोस्त के पेरेंट्स ने आपस मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बना लिया है, जिसमें वो इंटरेक्शन करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, सेल्फ टेस्ट करते हैं, कंपटीशन के नाम पे पढ़ा देते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीजें उन्होंने ढूंढ निकाली है। लेकिन वो जो फिजिकल इंटरेक्शन जो होता है, फिजिकल एक्टिविटीज होती है, वो थोड़ा मिस हो जाता है। और उसके चलते हमारी ये चिंता भी हो रही है कि इसके चलते इसका स्वास्थ्य पे क्या असर पड़े। जैसे अभी एक पेरेंट ने कहा कि उनकी नींद टाइम पे नहीं होती है, वो हम भी फेस कर रहे हैं। तो इसका शायद एक लॉन्ग टर्म पे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। और ये पूरा इंटरलिंक्ड है, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी और इंटरलिंक्ड है, तो ये पूरा ही गड़बड़ा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी समस्या है।
हम सोच रहे हैं, हम आगे बताएंगे। हम लोगों ने कुछ स्टेप्स लिए, वो भी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। बट फिलहाल तो यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो पूरा डिसिप्लिन चला गया है, टाइम स्केड्यूल गड़बड़ा गया है, फिजिकल इंटरेक्शन चला गया है, इसको कैसे हम मेकअप करें और ये कितनी जल्दी हमारे लिए ये पॉसिबल होगा कि हम इसको कोई सोल्यूशन निकाल पाए, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है जी। थैंक यू सर कि आप ये भी हमें बताएं कि वो जो सोशल जो रिलेशनशिप्स था, जो हम पहले मिलते थे अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से, सो वो इंटरेक्शन कहीं ना कहीं कम हो गया है। एंड ये हमें ऑफ कोर्स हमें हमारा इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं ज़रूर अफेक्ट कर रहा है। सो ये एक चैलेंज रहा है। एंड अगेन वो डिसिप्लिन और वो जो स्ट्रक्चर था पहले, वो भी डिसरप्ट हो गया है एंड उसको वापस ट्रैक में लेके आने के लिए ये एक चैलेंज रहा है हमारे लिए। थैंक यू सर। एंड अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस्टर राज साहू कि वो शेयर करें उनका पर्सपेक्टिव। फॉर बेसिकली मेरे को लगता है हर एक पेरेंट्स एंड हर एक जो फैमिली है, सबका घर में डिफरेंट फैमिली का डिफरेंट चैलेंजेस था। लाइक इन माई हाउस आई गिव यू एज, हम लोग का सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि बच्चे को फुल टाइम एंगेज कैसे रखना है। दैट इज वन ऑफ द बिग चैलेंजेस। उनका शेड्यूल तो जैसे मैं ऑलरेडी बोला था कि उनका शेड्यूल ऑलमोस्ट इट हैज़ बीन चेंज्ड। वो रात को लेट से सोना, सुबह लेट से उठना, मे बी ऑनलाइन क्लासेस का 5 मिनट पहले उठना। एंड बीइंग मेरे घर में जैसे मेरा बेटा छोटा है, ही इज गोइंग टू गोइंग स्कूल, मैंने स्कूल गोइंग किड है। बोथ द एल्डर डॉटर, एल्डर वन इज इन आर्किटेक्ट, सेकंड वन इज ज्वाइन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस, वो भी ज्वाइन कर ली, उसका भी अलग क्लासेस चल रहा था। तो 2 एल्डर सिस्टर के साथ में ये छोटा वाला है बीच में। तो इनका प्रॉब्लम था कि इन लोग लेट नाइट तक कुछ ना कुछ कर रहे हैं। रात को पता चल रहा है 2 बजे उठ के क्रिकेट खेल रहे हैं, घर का तोड़ रहे हैं, कुछ सामान ये तोड़ रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। दीज आर ऑल बिग चैलेंजेस। एंड नेक्स्ट मेरे को लगता है और बड़ा चैलेंजेस, आपको सब चीज आपको ठीक हो जाएगा। द बिग चैलेंजेस विल बी द मेक देम इन अगेन प्रॉपर शेड्यूल में लाना, वो बहुत बड़ा और एक चैलेंजेस रहेगा। लाइक ऑनलाइन क्लासेस एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आई हैव सीन दिस फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं पेरेंट्स लोग का। तो जो इरिटेशंस बच्चे का प्रति एंड जो शॉर्ट टेम्पर थोड़ा सा जो है वो पेरेंट में भी आ गया है। बच्चे भी जैसे कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, एक ही घर में है, सेम चीज या रिपीटिंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, वो उनके पास में सबका इरिटेशंस है। बट एक चीज बेटर है, द हियर द बिग थिंग इज गुड पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर सबको मिला के कैसे जो पेरेंट प्रॉपरली उनको मैनेज कर रहे हैं, आई थिंक दे आर द बेस्ट, आई कैन टेल यू। बट स्टिल कुछ तो प्रॉब्लम सभी के घर में है, वो हम लोग के यहाँ भी है। ये ऑल बिग चैलेंजेस वही है। मेन उनको एंगेज कैसे रखना। जैसे बेटा उठ के बोलता है कि नहीं पापा आज मैं बोर हो रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि वो आउटडोर गेम्स बहुत खेलता था, साइकिलिंग करता था, he used to go to जुम्बा क्लास की, ये डांस क्लास, ये क्लास, वो सब मिस हो रहे हैं। तो घर में जो मैक्सिमम जो हो पा रहे हैं वही कर रहे हैं। रिसेंटली आई हैव ब्रॉट फॉर हिम, वो ड्रम सेट उसको मंगा के कहीं से नेट में देख लिया, मेरे को ड्रम सेट चाहिए ताकि घर में मैं ड्रम बजाए कैसे टाइम पास करूँ। आई जस्ट गॉट अ ड्रम सेट फॉर दैट, बट इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द अदर पेरेंट्स, जो कि वो बिग चैलेंजेस आज का डेट में है। नेक्स्ट अगर स्कूल खुलता है तो इनको स्ट्रीमलाइन में लाना है। अगेन इट विल टेक आई थिंक 1 month ऑफ टाइम, इंक्लूडिंग बोथ पेरेंट साइड से भी एंड स्टूडेंट साइड से भी। थैंक यू सर। एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने शेयर कर दिया कि पेरेंट जो उनका जो स्थिति अभी चल रहा है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, या फिर उनका मेंटल हेल्थ कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, उनका वर्क लाइफ जो चेंज हो गया है उसके वजह से, उनका इमोशंस किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं डे टू डे लाइफ में, ये सब का भी इम्पैक्ट बच्चों पे हो रहा है। अगर अच्छे से नहीं मैनेज करेंगे
एक पेरेंट अपना मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड जो भी स्ट्रगल्स एक पेरेंट फेस कर रहा है, अगर वो अच्छे से नहीं मैनेज हो पाएगा तो उसका जो ड्रॉबैक है वो बच्चों पे कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। एकदम पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है बच्चों पे, एंड ये वेबिनार करने का यही हमारा एक इंटेंशन था कि हम पेरेंट्स को ये मैसेज दे पाएँ कि किस तरह से वो अपना ख्याल रखने शुरू करें ताकि बच्चों का ख्याल वो बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी वे से रख पाएँ। तो ये हमारा एक इंटेंशन भी था वेबिनार करने का, एंड आई होप बाय द एंड ऑफ द टॉक हम पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंचा पाएँ कि उनको अपना खुद का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। प्रोसेस में आई थिंक पेरेंट्स को एजुकेट करना भी बहुत बड़ा है। पेरेंट हैज टू बी गेट एजुकेटेड इन ऑल फील्ड, क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशंस में उनको कैसे डील करना, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल तो बहुत जगह में लॉसेस हुए हैं, घर में टेंशन है, बाहर टेंशन है। फ्रॉम लास्ट 6 months इफ यू सी बहुत सारे चेंजेस एवरी डे एंड एवरी मोमेंट इट हैपनिंग। इनिशियली इट वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट था, घर में कोई बाहर नहीं जाएगा, कि बाहर जाके भी आ रहा है तो हाथ पाँव धो के आ रहा है, ये कर रहा है, देन ऑटोमेटिकली आस्ते आस्ते वो भी कम हो जा रहा है। बट अगेन द केसेस आर आल्सो है इंक्रीजिंग। बच्चे भी इरिटेट हो रहे हैं समटाइम कि नहीं पापा कुछ करने दो। एंड वन मोर थिंग्स आई लाइक टू ऐड इट हियर, द चैलेंजेस एंड ऑल। जितने भी स्कूल में जो क्लासेस वगैरह भी चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, आई थिंक एंड ऑफ द सेशंस द स्टूडेंट हैज टू इंटरेक्ट विद देयर फ्रेंड्स। स्कूल का जो बच्चे हैं, आई थिंक वहाँ भी फैकल्टी को लास्ट का 5 मिनट या 10 मिनट पूरा ही छोड़ देना चाहिए, बच्चा भी तुम लोग इंटरेक्शन करो, सो दैट यू कैन टॉक अमंग योरसेल्फ, देन दे कैन फाइंड आउट। But maybe lower classes may not be possible, higher classes may depend upon the schools and colleges, how they are doing it. But still, being a parents from the Arnos is doing really good. I am always interacting with Father Jose, and I used to give given a lot of input to him also regarding this online classes. But still, I am finding that particular part is missing in lot many schools. My friends are also there in some other schools. हम लोग भी सब है. And another part, what I am seeing it in the other parents, the parents are also not that much educated in this online classes and all. And most of the cases, they are using mobile phone and classes in mobile phone is not that much easy. It is again there is big challenges in that particular part. जिसके घर में लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर हैं, फाइन, उसमें कंडक्टिंग ऑनलाइन और व्यूइंग ऑनलाइन क्लासेस वो बहुत बढ़िया हैं, बट मोबाइल में सब कुछ उतना ईजी नहीं हो पा रहा। This is my one big like observation during this pandemic online classes. थैंक यू सर। काफ़ी वैल्यूएबल फीडबैक भी है कि पेरेंट्स को भी एजुकेट करना किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, एंड कहाँ कहाँ पे फ़ोन रिक्वायर्ड है, कहाँ पे फ़ोन का ज़रूरत नहीं है। ये सारे चीज़ों को समझाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि एक डिसिप्लिन कहीं ना कहीं मेंटेन होके रह पाए घर पे भी, एंड एक स्ट्रक्चर एंड रूटीन जो हम एक चैलेंज की और तरह देख रहे हैं वो भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। एंड आपने और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ बोला दैट इज़ एंगेजमेंट। बच्चों को कैसे हम एंगेज करके रखें खुद के साथ घर पे एंड ऑल्सो फ्रेंड्स के साथ, ये एक चैलेंज रहा है, एंड हमें इसके लिए भी सॉल्यूशंस ढूंढना पड़ेगा कि कैसे वो एंगेजमेंट को हम बनाए रखें। थैंक यू सो मच। आप लोगों का फीडबैक काफ़ी वैल्यूएबल रहा है, एंड सिंस आप लोगों ने अभी अपना चैलेंजेस शेयर किया है रिगार्डिंग एज अ पेरेंट, क्या आपके लिए चैलेंजिंग रहा है, अभी मैं बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ वे में ये जानना चाहूँगी कि आपने ये जो चैलेंजेस आपने अभी जो शेयर किया उसको आपने कैसे फेस किया। आपने कुछ ना कुछ टिप्स टेक्निक्स ज़रूर यूज़ किया होगा, एंड वो ट्रायल एंड एरर मेथड भी हुआ होगा कि ये अप्लाई करके देखते हैं, हो गया तो बहुत मस्त, अगर ये काम नहीं किया तो कुछ और तरीका हम यूज़ करेंगे। सो अभी हम सारे पेरेंट्स से यही जानना चाहेंगे कि आपने जो पर्टिकुलर चैलेंज जो आपने शेयर किया उसको आपने कैसे फेस किया, वो सोल्यूशन हम जानना चाहेंगे। सो हम वही सेम सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। प्लाबनी मैम, अगर आप शेयर करेंगे तो। हाँ मोनालिसा, इसमें एक चीज ढेर सारा पेरेंट्स के लिए पेशेंस जरूरी है,
थोड़ा सा पेरेंट्स का इंटेलिजेंसी और थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, लेकिन ढेर सारा पेशेंस जरूरी है। तो ये तीनों चीज एक पेरेंट्स अपने साथ लेके अपने बच्चों को वो एक डिसिप्लिन लाइफ की ओर वो ले जा सकता है। हर माँ बाप को पता रहता है अपने बच्चे की कमजोरी क्या है। माई डॉटर सी इज वेरी स्वीट एंड वेरी ओबीडियंट, तो उसको बहुत आसानी से मैं हैंडल करती हूँ। इतना टाइम पे उठना ये सही है, ये चीज गलत है, वो आसानी से समझ जाती है। शी इज वेरी ओबीडियंट, तो उसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा। बट माई सन हु इज इन स्टैंडर्ड 7, उसको थोड़ा हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो वहां मैं उसको क्या करती थी कि जो ऑनलाइन क्लास के बाद मैं उसको खुल के अपने दोस्तों के साथ बात करने के लिए छोड़ देती थी आधा घंटा। और खाली इतना ही नहीं, हर बच्चे लोगों का अभी एक तो कमजोरी है कि फोन पे गेम खेलना है, फोन पे गेम्स खेलना है। तो मैंने भी उसके लिए एक तो लिमिट रखा था, पूरा डे तुम अपना काम पूरा सिंसियरली करोगे। अभी जैसे अभी बाहर खेलना कूदना सब बंद है, तो ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, तो कुछ ना कुछ खेलेगा। घर में इंडोर गेम्स हमारे साथ खेल रहा है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ कुछ नहीं खेल पा रहा है। तो उसके लिए मैं एक तो लिमिटेशन रखी थी, रात का 8 to 9 तुम अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम जो है मोबाइल पे तुम ये खेल सकते हो। अगर तुम सारा दिन अपना काम पूरा जैसे स्कूल टाइम में जैसे सब चल रहा था वैसे पूरा टाइम टेबल के हिसाब से तुम करते जाओगे, तो तुम्हारे लिए 8 to 9 फ्री टाइम है ये गेम खेलने के लिए फोन पे। और बीच में लेकिन एकदम मोबाइल यूज नहीं करना है गेम्स के लिए या फिर दूसरा कोई और चीज के लिए। इतना टाइम दोस्तों के साथ बातचीत करना और इतना टाइम दोस्तों के साथ खेलना। और टीवी देखने का भी एक तो बहुत अच्छा, ही इज फॉन्ड ऑफ सीइंग फिल्म्स ऑफ अजय देवगन लाइक सिम्बा, कुछ वो पुलिस ऑफिसर लोगों का सब फिल्म्स देखता है। तो मैंने उसके लिए एक तो टैग भी डाला है कि वो अपने मनपसंद सब पुलिस रिलेटेड फिल्म सब अपना तो ऐसे में उसको गिफ्ट देती थी कि जैसे स्कूल में से स्पोर्ट्स में भाई जो फर्स्ट हुआ तो ये प्राइज मिला, अटेंडेंस फुल तो एक तो प्राइज मिला। तो उस हिसाब से उसको उसके लिए मैं डिफरेंट ये के लिए एक तो गिफ्ट में तय की थी। तो इसी तरह से सब चल रहा है, बैलेंस से सब चल रहा है। थैंक यू मैम। आप एक एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक अभी शेयर किए, दैट इज़ अगर हम साइकोलॉजी के टर्म्स में बोले दैट इज़ रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। बेसिकली बच्चे जो कर रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एंड उसके लिए हम उनको वो मेहनत करने के लिए हम उनको एक रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो वो इसके वजह से क्या हो रहा है, उनका जो मोटिवेशन लेवल है, वो जो डिसिप्लिन, रूटीन, स्ट्रक्चर मेंटेन करना, वो भी बहुत ही प्रैक्टिकल वे में हो पाएगा। सो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि बच्चों के एफर्ट्स, छोटे छोटे एफर्ट्स को रिकग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना एंड अप्रिशिएट करना थ्रू स्मॉल रिवॉर्ड्स, रिकग्निशंस, वो बहुत ही ज़रूरी है अभी के समय में। एंड वो एक बॉन्डिंग भी क्रिएट करने में बहुत ही मदद करता है। सो थैंक यू मैम। एंड अभी मैं संजुक्ता मैम को पूछना चाहूँगी कि वो क्या तरीका यूज़ किए हैं जिसके द्वारा जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रही हैं उसका वो सामना कर पाएँ। बच्चों के लाइफ में तो डिसिप्लिन पहले ज़रूरी है, इसीलिए मैं क्या की हूँ ना, एक टाइम टेबल फॉलो कर रही हूँ। पहले बेटा को और बेटी को बैठा दी हूँ कि तुम लोग पहले टाइम टेबल फॉलो करो, टाइम टेबल खुद बनाओ और खुद फॉलो करो उसको। फिर उस बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ता है। उन पहले मैं प्रेयर करती हूँ तो वो मेरे को देख के जाके प्रेयर करते हैं। फिर चलिए एक डाइट प्लान बनाते हैं, डाइट प्लान और हेल्दी फूड का चार्ट बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है ना, उनका उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी लगता है और मेरे को थोड़ा कुकिंग में हेल्प भी करते हैं और उनको इंटरेस्ट भी होता है, उनको टाइम भी स्पेंड होता है। फिर जो स्कूल से मिलता है कोटेशन बुक और मैगजीन्स, और वो के लिए टाइम नहीं मिलता है उन लोग को। फिर उसको क्या करती हूँ ना, सोने का टाइम में मैं खुद मैगजीन पढ़ती हूँ और कि बेटी को मन हो कि वो भी कोटेशन बुक लेके पढ़े। फिर उसका वो आदत भी हो गया है, वो सोने का टाइम में कोटेशन बुक लेके सोती है। और बेटा का क्या करे, वो तो कोटेशन बुक नहीं पढ़ पाता है, क्लास 1 का है, वो बड़ा वाला मैगजीन देखता है अनरोल का।
फिर उसका यही आदत हो गया। मैं सोचती हूँ कि उनके बच्चों के साथ बच्चे बनना बहुत जरूरी है। जो मेरा भी थोड़ा इरेगुलरिटी हो रहा था कि हाँ प्रेयर आज करेंगे तो कल थोड़ा मेरा कंटिन्यूटी नहीं रहता था। आजकल मैं प्रेयर करती हूँ तो वो लोग मेरे साथ प्रेयर करते हैं। मैं कुकिंग चार्ट फॉलो करती हूँ तो वो डाइट प्लान चार्ट फॉलो करते हैं। और बुक्स देखने में और पढ़ने में भी वो इंटरेस्ट उनमें आ गया है। स्पेशली वो जो कोटेशन बुक स्कूल्स में दिया जाता है, मैगजीन बुक, वो सब फॉलो कर रहे हैं और पढ़ के सो जाते हैं। वो थोड़ा सेटिस्फेक्शन लग रहा है कि मोबाइल से साइड होके थोड़ा मैगजीन में इंटरेस्ट ला रहे हैं, बुक्स के साथ थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट हो रहा है उन लोग का। थैंक यू मैम, इतना इम्पोर्टेंट एक टिप आप शेयर किए कि हम जो करेंगे बच्चे देखेंगे एंड कॉपी करेंगे। सो बेसिकली अगर वो रूटीन हमें लेके आना है तो हमें खुद को एक रूटीन में रहना है एंड हमें खुद को एक डिसिप्लिन में रहना है। तो बच्चे ऑटोमेटिकली देख के एक ही बार तो होगा नहीं, बट स्लोली वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। बच्चे एक्चुअली बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं, बच्चों से ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वर्स और कहीं नहीं मिलेगा। तो वो देखते हैं एंड अगर हम एज अ पेरेंट हम अपना लाइफ को बैलेंस्ड वे में हम लेके चल रहे हैं तो वो बच्चों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए। जी मैम, थैंक यू मैम। एंड बुक्स पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा हैबिट आपने स्टार्ट किया है कि सोने से पहले कुछ पढ़ना, तो वो हमारे माइंड के लिए भी एक पॉजिटिव फूड जो होता है वो भी हम अपने माइंड को फीड कर रहे हैं, जो पॉजिटिविटी मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। जी, वो मेरे साथ भी शेयर करते हैं, वो पढ़ के बोलते हैं कि मम्मी ये मैगजीन में ये लिखा हुआ है। छोटा वाला भी दिखाता है और बेटी भी दिखाती है कि देखो कितना सुंदर लिखा हुआ है, हाउ यू सक्सेस इन योर लाइफ। ये सब मेरे साथ शेयर करते हैं, वो अच्छा लगता है सुनने में। जी, सो वहाँ पे शेयरिंग भी हो जा रहा है, एक बॉन्डिंग भी क्रिएट हो रहा है। सो दीज आर सम टिप्स जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं एंड एंड हमको काफ़ी मदद करेगा इस पैंडेमिक के टाइम पे स्ट्रॉन्ग होके बाहर निकलने के लिए। जी, अभी मैं हमारे जो पेरेंट्स हैं, फादर्स हैं, उनको पूछना चाहूँगी कि उन्होंने क्या क्या टिप्स टेक्निक्स यूज़ किया है। ये जो चैलेंजेस अभी थोड़ी देर पहले हम शेयर किए उसको फेस करने के लिए क्या क्या आपने तरीका आजमाया है। सो हम स्टार्ट करेंगे मिस्टर मुकेश के साथ एंड देन हम बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। जी सर। ये जो हम कुछ ऐसा ही करते हैं, जो कहा ना आपने रिवार्ड और अप्रिशिएशन, ये काफी वर्क करता है। जब टाइम पे बच्चे अगर कुछ करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो दोनों ही केस में हम, जैसे हमने हमारी वाइफ ने स्टार्ट किया कि उनको कुछ स्टिकर्स देना या गोल्डन पॉइंट्स के नाम पे कुछ पॉइंट्स देना या नेगेटिव करना, जैसे टीचर्स लोग करते हैं, हम तो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये काफी वर्क करता है बच्चों में। गोल्डन पॉइंट्स मिल रहे हैं, हमें सिल्वर पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो एक हमें स्टार दे दिया मम्मा ने, ये काउंट करता है, काफी काउंट करता है। इसके अलावा 2-3 गुड प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो करते हैं, मुझे लगता है वो काफी वर्कआउट करता है कि हमें बच्चों का जो इंक्विजिटिवनेस है, जो नई नई चीजें जानने का, उसको अगर हम थोड़ा बढ़ावा दे तो काम करता है। जैसे हम उसको ये बताने के बजाय कि देखिए बच्चों में होता है कि हम मोबाइल में देखें या कंप्यूटर में लगे रहें, तो हम उससे कहते हैं कि भाई ये बताओ कि ये मोबाइल का काम के सिस्टम कैसे काम करता है। मेरा बच्चा एक स्टैंडर्ड 4 में है और एक KG 1 में है, KG 2 में, तो हम उससे कहते हैं कि ये कैसे काम करता है बताओ, तो खुद एक नेट पे हम उसको साइट खोल के देते हैं, वो खुद एक्सप्लोर करके बताता है। फिर तो खुद पढ़ रहा है और खुद सीख रहा है, तो हमें लगता है तो अब क्या होता है, हमें बोलना नहीं पड़ता, पढ़ लो। तो कुछ कई सारे ऐसे जो सीरीज है जो नेट पे अवेलेबल है, वो हम आइडेंटिफाई करके उनसे कहते हैं पढ़ो, ये एक है। और 2 बहुत अच्छा जो हमारी वाइफ ने डिस्कवर किया, एक ये उन्होंने हाल में स्टार्ट किया कि उसके अपने फ्रेंड्स हैं, उनके 4-5 फ्रेंड्स हैं जो पहले स्टैंडर्ड 3 या 2 में थे, तो उस फ्रेंड्स के हम लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप इन्होंने बना दिया, उनकी मदर्स और हमारी वाइफ ने मिलके। अब जो है सेम सब्जेक्ट वो एक साथ पढ़ लेते हैं और एक मदर उनको सबका टेस्ट लेती हैं, ये टेस्ट लो। अब वो बच्चों में आपस में कंपटीशन होता है, हम जल्दी करें, हम जल्दी करें, हम जल्दी करें, और नेक्स्ट डे का इवैल्यूएट कर देते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हम लेंगे। तो इस बहाने जो है एक दूसरे को आउट कम्पीट करने के लिए लोग उसमें भी आते हैं। एक और अच्छा चीज हमने ये किया, बच्चों का जैसे इंटरेस्ट है कि हम कंप्यूटर्स में ज्यादा करें। अब मेरा बच्चा जैसे मैंने कहा कि स्टैंडर्ड 4 में है,
तो हमने कुछ उनको सिखाना शुरू कर दिया कोडिंग्स। चूंकि मुझे थोड़ी बहुत आती है तो मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उन्हें बताना शुरू कर दिया। और कुछ कोडिंग्स अवेलेबल है, फ्री वर्जन्स अवेलेबल गवर्नमेंट्स के साइट्स पे अवेलेबल है, जैसे प्लैनेट कोड एक एग्जांपल है। तो वहां पे हम कहते हैं उसको खुद सीखो। अब बच्चा जो है वो खुद प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोडिंग कर रहा है और छोटे छोटे गेम्स बना रहा है और खुद वो गेम्स को खेल के खुद इम्प्रोवाइज कर रहा है। तो इसका फायदा ये होगा कि हम कंप्यूटर में दे रहे हैं लेकिन हम यूटिलाइज कर रहे हैं टू लर्न समथिंग। तो यही हम उसको मैनिपुलेट करने, आप कह सकते हैं मैनिपुलेट कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट को, उसको रिवार्ड कर रहे हैं अगर अच्छा कर रहा है तो, और नहीं कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव पॉइंट देते हैं। मारना पीटना तो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। तो यही इसी तरह से कुछ चीजों को हम जो है मैनिपुलेट करके उसको कंप्यूटर टाइम के जगह पे वो हम खुद ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करें या खुद ही एक इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करें नेट पे, या विकिपीडिया ही मान लीजिए लेता है, हम कहते हैं उसका नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बताओ क्या होता है, नेट पे ढूंढ के बताओ। मैं उसको पूछता बोलता बेटा पेंटियम 4 क्या होता है, तो मुझे मालूम है? कहता नहीं। बोला मुझे भी नहीं मालूम है, भैया ढूंढ के बताओ। वो कहता हमें जानकारी चाहिए, मेरे पास टाइम है, तुम ढूंढ दो। अब वो ढूंढ रहा है कंप्यूटर में, बताता है ये। तो इस तरह से वो खुद सीख लेता है। तो मुझे लगता है इस तरह से थोड़ा मैनिपुलेट करें तो हम मैनेज कर रहे हैं। और ये जो गोल्डन पॉइंट और ये जो पॉइंट वाला सिस्टम है जो कि बेसिकली टीचर्स का इन्वेंशन है, उसको हम काफी मैनिपुलेट करते हैं। ये सब कुछ चीजें हैं जिससे हम कर रहे हैं। बाकी तो हमसे ज्यादा तो वाइफ ज्यादा इन्वॉल्व होती है सब में, तो उनके नए नए आइडियाज चलते हैं। जी थैंक यू सर, आपने बहुत ही इनोवेटिव तरीका बताया है। एंड आई रियली आई एम श्योर कि जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देखेंगे उनको ज़रूर आइडियाज़ मिलेगा अप्लाई करने के लिए एंड बच्चों को एंगेज रखने के लिए। एंड जैसे हम आप भी बोले कि वो रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन एंड अप्रिसिएशन वो बहुत ज़रूरी है। एंड बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ करना, उनका क्यूरियोसिटी जो है उसको पॉजिटिव वे में एक्सप्लोर करना। टेक्नोलॉजी को हम पॉजिटिव तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन पेरेंट्स, अगर हम पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे इस मैटर एस्पेक्ट्स में, तभी जाके हम अपने बच्चों को गाइड कर पाएंगे। तो खुद को अवेयर कराना, खुद को ये एरियाज़ में नॉलेज गेन कराना बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट, एंड ताकि हम बच्चों को अच्छे वे से गाइड कर पाएँ। सो थैंक यू सर। एंड अभी मैं मिस्टर राज साहू उनको पूछना चाहूँगी कि वो क्या टिप्स एंड टेक्निक्स यूज़ किए हैं एज अ पेरेंट टू फेस ऑल दी चैलेंजेस। देखिए बेसिकली क्या है मेरे घर में वही मैं जस्ट बोल रहा था, एवरी पेरेंट्स एंड एवरी घर का माहौल डिफरेंट है। मेरे घर में क्योंकि मेरे जो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उसके 2 बड़े सिस्टर्स हैं, तो इनिशियली व्हेन दिस पैंडेमिक वाज स्टार्टेड सबको बहुत इतना ज़्यादा कोविड का हाइप क्रिएट किए थे कि डर बैठा दिए थे कि कुछ ना कुछ हो रहा है, आज बाहर जाओ तो पता चलेगा कोविड होके आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो घर से कोई बाहर से भी आ रहा है तो उसको ये करो। तो इनिशियली वी आर वेरी सिस्टमेटिक, करीब चलिए 1 महीना तक या 15 दिन 20 दिन तक था। आफ्टर दैट व्हेन वी फाइंड कि नहीं उन लोग भी पूरा सिस्टम में डालने से, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं एरर एंड ट्रायल मेथड, हम लोग भी बहुत ट्राई किए, वी हैव ट्राइड लॉट ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कैसे उनको ये रखना है। देन कुछ दिन का बाद में पता चला नहीं छोड़ दो इनको जो करना है। आई टोल्ड कि उन लोग रात को 2 बजे तक 3 बजे तक सो नहीं रहे हैं, सुबह उठ के कुछ करके फिर दोपहर को पूरा सो रहे हैं, उनका खाने का टाइमिंग सब टाइमिंग चेंज हो गया। देन अल्टीमेटली जब इनका ऑनलाइन क्लासेस एंड बाकी क्लासेस जब स्टार्ट हुआ तब पता चला कि नहीं बेसिकली पेरेंट लोग भी अगर आप पूछेंगे, जितने भी पेरेंट हैं, जैसे मेरा बेटा क्लास 6 में पढ़ रहा है, आई थिंक मेरा वाइफ क्लास 6 का लगता है पूरा चैप्टर पढ़ ली होगी, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ ली, क्योंकि जो ऑनलाइन में आता है मेरे को पूछ रहा है, ये कर रहा है, कुछ बहन लोग दे रहे हैं। एंड पूरा प्रोसेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हम लोग का चैलेंजेस था वो उसका टाइम एंगेज करने का एंड उसको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में डालने के। लाइक मैं सुबह साइकिलिंग करता हूँ, आई जनरली गो एट 5 o'clock फॉर साइकिलिंग एवरी डे, वीकली अराउंड 5 to 6 days आई गो फॉर साइकिलिंग फॉर अराउंड 25 to 30 किलोमीटर। मैं उसको कभी कभी वीकली 2-3 दिन ले जाता हूँ साइकिलिंग के लिए कि सुबह सुबह साइकिलिंग करके आ जाए।
तो फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ा सा उसको हम लोग एंगेज करते हैं। देन जैसे रिवार्ड का बात मिस्टर मुकेश जी ने बोले, सेम थिंग आई हैव डन कि नहीं तुम ये करोगे अच्छा करोगे तो चलो तुम्हारे लिए एक ड्रम सेट ला के देंगे, तो वो खुशी खुशी सब कुछ कर रहा है। देन मैम टोल लाइक कि हम लोग उसको पिक्चर दिखा रहे हैं या उसका ये वाला, तो चलो वो चीज भी हम मेरे यहाँ हो रहा है। तो दे इनफैक्ट ट्राई टू कॉपी सम ऑफ द डायलॉग एंड उसका जो एसेंट है उसको कॉपी करके उन लोग बोलने लगे। तो डिफरेंट उनका अलग फील्ड में भी जो इंटरेस्ट है वो भी मैं देखने को मिला है प्रोसेस में, जितने भी बच्चे थे। यही है बेसिकली, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड चैलेंजेस तो बहुत ही सारे थे, वी हैव ट्राइड लॉट ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बट स्टिल अगेन वी आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू मेक देम एंगेज व्हेन दे आर फ्री। कुछ ना कुछ उनको चाहिए क्योंकि दे आर ऑल विद इन द हाउस, मतलब 4 दीवार के अंदर में ही है, दे आर नॉट गोइंग आउट, क्योंकि फ्रेंड से मिल नहीं पाते। बिगेस्ट डिसएडवांटेज कि वो फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हैं या कोई ग्रुप गेम या फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। दैट इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट, जो हम लोग उसमें शायद हम लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मेरा केस है तो मैं साइकिलिंग में कभी ले जाता हूँ सुबह सुबह, बट डे टाइम में बाकी पेरेंट्स के पास जाना है कि उनका घर जाना है, वो थोड़ा सा भी रेस्ट्रिक्शन सभी जगह में चल रहा है। आई थिंक आई ऑल्सो लाइक टू नो फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट दैट उसको हम लोग कैसे डील करें। थैंक यू सर। आपने एंड मुकेश सर दोनों ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोला, वो एक बडी सिस्टम जो क्रिएट करना। अगर टेक्निकल टर्म्स में हम बात करें तो बच्चों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना। जैसे कि सर राज सर आपने 2 बार हमें बोला कि सारे परिवार अलग होते हैं, तो सारे परिवारों का चैलेंजेस भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, एंड रिसोर्सेज जो है वो एक फैमिली में कुछ और होगा। आई एम सीइंग इट, क्योंकि मेरे अगल बगल में भी कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इधर आर्नोस जाते हैं या सेंट जोसेफ जाता है, वहाँ जाते हैं। I am seeing all the different parents have a different challenges. मेरे कुछ challenges दूसरा है। मेरे केस में my son is in school but both the elder daughter are in colleges. एक तो architecture complete करके she is working from home. तो there are lot of people who can take care of these kids. मेरे छोटा बेटा को केयर करने के लिए बहुत सारे हैं। एंड कभी-कभी मैं डांटता भी हूँ यार उनको ऐसे करो, तो बेटी लोग जो है बड़े हैं उन लोग उसका ऊपर बोलते हैं पापा अब छोड़ दो ना, ये कर लेगा, चिंता मत करो, हम लोग देख लेंगे। रात को 12 बजे 2 बजे तक भी और क्रिकेट खेल रहे हैं, सुबह कर लेगा ना पापा ये। बट बाकी जगह में जहाँ मैं देख रहा हूँ किसी का पेरेंट्स, जैसे मेरे बगल में है, हस्बैंड इज इन हैदराबाद एंड वाइफ है, उनके 2 बेटी हैं। उनके केस में चैलेंजेस सेकंड बहुत ज़्यादा है। उनको राशन का सामान भी लेके आना है, वाइफ काम कर रही है, एक इंश्योरेंस सेक्टर्स में काम कर रही है, तो उनका चैलेंजेस आर वेरी है। वो कभी कभी घर से काम कर रही है, वो घर का काम भी देख रही है, सेम टाइम में ऑनलाइन के क्लासेस चल रहा है, वो भी कर नहीं पा रहे हैं। दिस इज समथिंग, चैलेंजेस बहुत सारे हैं जी, डिपेंड अपॉन द पेरेंट्स जी। एंड जब आपने चैलेंज शेयर किया तो आप लोगों ने सोल्यूशन भी हमें बताया। पता नहीं आप लोग रियलाइज़ किए नहीं किए, बट मैंने तो रियलाइज़ किया। सोल्यूशन ये है कि एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना, ताकि हम पेरेंट्स भी एकजुट हो के एक दूसरे की मदद करें। हम जब देख रहे हैं कि हमारे नेबर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड तो अगर हम वेल इक्विप्ड हैं, हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो वो रिसोर्सेज शेयर करना एंड एक दूसरे को मदद करना। जैसे कि अगर हमारा बच्चा सर्टेन सब्जेक्ट में अच्छा है एंड उसका जो फ्रेंड है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहा है, एंड तो वहाँ पे जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको इनकरेज करना कि वाई डोंट यू टेक आउट हाफ एन आवर एक दिन में एंड वो फ्रेंड को हेल्प करो जो स्ट्रगल कर रहा है इस सब्जेक्ट में। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक हम सपोर्ट सिस्टम ही क्रिएट कर दे रहे हैं जो काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करने में हमें बहुत मदद करेगा। सो ये और थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ, लाइक इन माय केसेस, जैसे आप प्रोबेबली इसको पॉडकास्ट में आप उसको पब्लिश करेंगे। जैसे मेरी बेटी है बड़ी वाली, शी इज वेरी गुड एंकरिंग एंड उसका इंग्लिश राइटर बहुत अच्छा है, तो वो पॉडकास्ट में जैसे 3-4 स्टोरी वो शेयर की है, तो बहुत सारे उसका लाइक्स एंड सपोर्ट आया है। तभी वो बेटा है उसको भी वो कर रहा है कि तुम भी कुछ स्टोरी बोलो, रात को बैठा के उसको सिखा रहा है, 1-2 बार ट्राई कर रहा है।
उसका भी 2 स्टोरी है, तो वो एंगेज हो रहा है, तो उसका एक वीक उसमें चला गया, हाँ मैं एक स्टोरी बोलना है, तो एक वीक मेरा टाइम निकल गया, चलो उसमें वो ये हो गया। आई थिंक पेरेंट्स को भी उस लाइन में अगर देंगे तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा। एंड न्यू शेयरिंग न्यू ऑफ फील्ड में है। जी, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक फैमिली में। सो थैंक यू सर। एंड हम अभी हिमांशु सर से पूछना चाहेंगे कि उनका किस तरह का सॉल्यूशंस एंड टेक्निक्स वो यूज़ किए हैं टू डील विद द चैलेंजेस जो एज अ पेरेंट वो फेस कर रहे हैं। मैडम, अभी सारे मेरे से पहले जो पेरेंट्स डिस्कस किए, मैं इनका कुछ कॉम्बिनेशन वैसा ही कुछ यूज करता हूँ। जैसे क्योंकि वो आउटडोर गेम नहीं खेल पाता है, साइकिलिंग के लिए कभी कभी जाता है जब कोई होते नहीं है स्ट्रीट्स में, अभी अलाउड है शाम को या फिर अर्ली मॉर्निंग, अदरवाइज नॉर्मली वो खुद ही नहीं निकलता घर से। फिर क्या करते हैं, उसको इंडोर गेम के लिए वो चेस के लिए कभी इन्वाइट करता हूँ, आओ चेस खेल लें, तो अगर वो उस दिन मन करे तो चेस खेल लेता है। इनफैक्ट मेरे और मेरे वाइफ ने इनफैक्ट एक स्कीम ही किया है कभी कि वो पूरा सिस्टमेटिक कभी कुछ किया, जैसे ऑनलाइन क्लासेस किया, सारे होमवर्क किए, तो उस दिन उसको आधा घंटा या 1 घंटा एक्स्ट्रा खेलने को मिल जाता है, मोबाइल में खेलने को मिल जाता है। और उसमें उसको परमिटेड है कि वो अपना कजिन और कुछ सिलेक्टेड दोस्तों के साथ कुछ गेम्स खेल लेता है। तो उसको पता है अगर आज सब कुछ ठीक करूंगा तो मुझे कुछ टाइम और मिल जाएगा खेलने के लिए। और एक उसका इंटरेस्ट मोस्टली स्पेस ये में है, स्पेस क्राफ्ट, उस सब में वो खेलता भी है, कार्टून भी देखता है, तो उसी रिलेटेड मोस्टली देखता है। तो मैं क्या करता हूँ, पेपर कटिंग में कभी कभी कुछ आता है स्पेस रिलेटेड चीज, तो मैं उसको वही वाला पोर्शन पढ़ने के लिए देता हूँ, और उसमें उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उसके बारे में ज्यादा पढ़ता है। मेरे ख्याल से राफेल के बारे में शायद मेरे से ज्यादा उसको मालूम होगा, क्योंकि उसके रिलेटेड न्यूज देखना पसंद करता है, वही पढ़ना पसंद करता है। दूसरा चीज है वो जो कंप्यूटर क्लासेस ये सब कुछ सीखने लगता है, उस जब भी सीखता है मैं उसको चैलेंज देता हूँ कि कुछ चीजें मुझे नहीं आती, तू करके बता, तो वो उसमें इंटरेस्ट लेता है। जैसे मुझे मेल मर्ज आते हुए भी मैं बताता हूँ मुझे नहीं आता है, थोड़ा करके दिखा, तो मुझे मेल मर्ज बता के दिखाता है। सिमिलरली एक्सेल शीट में कुछ नया चीज करने को मिला, कस्टम शॉर्ट कुछ करना चाहे, मैं बोला उसको करके दिखा, मुझे नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है। पावर पॉइंट में मैं ऑडियो ऐड नहीं कर पा रहा, मुझे वो थोड़ा करके दिखा दे, वो फिर कोशिश करके 1-2 बार में दिखा देता है, तो उसे अच्छा लगता है कि फिर वो बोलता है आज पापा को मैं बीट कर दिया। कभी कभी उसको रीजनिंग का चैलेंज देता हूँ, ये रीजनिंग करके दिखा विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, करता है। रीजनिंग जब डिफिकल्ट होता है मैं बताता हूँ, कभी कभी जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं देता हूँ, ये मुझे नहीं आता है, तब वो उसमें और इंटरेस्ट लेता है कि मुझे कैसे कम टाइम में उसको सॉल्व करना है, और वो सॉल्व कर देता है। जब सॉल्व कर देता है फिर अपने डायरी में एक नोट लिखता है, पापा को आज ये रीजनिंग नहीं आया, मैं आज पापा को इतना नंबर रीजनिंग में मैं आज पापा को हराया, उसमें उसको खुशी मिलती है, तो उसमें उसका थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो वही थोड़ा सा रिवार्ड, थोड़ा सा जब डिसिप्लिन नहीं रहता है, टाइमली काम नहीं करता है, तो उस दिन रेस्ट्रिक्शन हो जाता है गेम खेलने में या टीवी देखने में, उस तरह का पॉलिसी हम फॉलो करते हैं, ये इफेक्टिव है। जी सर, थैंक यू। एंड दैट्स ट्रू कि हम बच्चों का जो एक्सप्लोर करना एंड क्यूरियोसिटी को अगेन उसको बढ़ाना, कि हाँ एक्सप्लोर करो, खुद नया टेक्निक्स एंड नए चीज़ों के बारे में जानने का ट्राई करो, वो जो मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट जो है एज अ पेरेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड वो हमें बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में भी हमको वापस वो बैलेंस क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। सो वो एनकरेजमेंट फ्रॉम पेरेंट साइड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सर फॉर शेयरिंग। एंड नाउ हमारे जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, मैं उनको पूछना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स ने मैं समराइज़ करूँगी कि हमारे पेरेंट्स ने जो चैलेंजेस बोला, जैसे कि इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स कम हो गया है, जो रूटीन स्ट्रक्चर रिदम था वो भी कहीं ना कहीं पहले जैसा नहीं है, स्कूल लाइफ को घर पे एक्सपीरियंस करना वो एक चैलेंज है, एंड मोटिवेशन को मेंटेन करके रखना वो एक चैलेंज हमारे पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। डिसिप्लिन एंड जो फिज़िकल इंटरेक्शन एंड सोशल जो इंटरेक्शन है वो जब रिड्यूस हो गया है,
तो उसको वापस लेके आना वो एक चैलेंज। एंड एंगेज्ड रखना बच्चों को, उनको encourage करना, अभी to stay motivated and pay attention on both their mental health and physical health, ये सारे एरिया में हम उनको encourage करके रखें, वो भी एक कहीं ना कहीं चैलेंज है। एंड ऑल्सो द अनसर्टेनिटी कि आगे क्या होगा, आगे कैसे मैनेज करेंगे, ये कुछ थॉट्स है जो हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। एंड मैं भी जानना चाहूँगी हमारे साइकोलॉजिस्ट से कि कैसे हम हमारे पेरेंट्स को कुछ टिप्स एंड सजेशंस दें ताकि वो इस एस्पेक्ट में हम हेल्प खुद को प्रोवाइड कर पाएँ। सो हम स्टार्ट करेंगे फादर डैनियल से, ताकि वो हमें कुछ अपना एक्सपर्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस शेयर करें ताकि हमारे पेरेंट्स सीख पाएँ। जी थैंक यू। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग जो पेरेंट हैं, आप लोग बहुत सारी इतनी अच्छी टेक्निक्स खुद यूज़ कर रहे हैं, और मैं उन सबों को नोट कर रहा हूँ। जैसे कि रिवॉर्ड सिस्टम बड़ी अच्छी बात है, और गिविंग स्टार देना या नेगेटिव पॉइंट्स देना, और जो उनके इंटरेस्ट है उनको और बढ़ावा देने के लिए उसी फील्ड में उन लोग को क्वेश्चन करना, ये सब बहुत अच्छी बात आप लोग कर रहे हैं। 2-3 बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो यह है कि हम लोग बोलते रहते हैं हर समय कि पहला जो स्कूल है वो कहाँ पर है। पहला स्कूल हम लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली हमारी पहली स्कूल है। तो एक मैडम, शायद प्लबनी मैडम की संयुक्ता मैडम ने कहा था कि बच्चे लोग हमको देखकर सीखते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं वही उसको करना चाहते हैं। आज एक टीचर हमारे पास आई थी, तो वो बोल रही थी कि मेरी बेटी मेरा पुराना लैपटॉप लेकर ऑनलाइन क्लास का प्रैक्टिस कर रही है, केजी में है, लेकिन मुझको देखती है और फिर वो पूछती है इमेजिनरी स्टूडेंट से, एम आई ऑडिबल, मुझको सुन पा रहे हो कि नहीं, बच्चे लोग बात मत करो। तो वो जो छोटी बच्ची केजी की अपने मम्मी को देखकर प्रैक्टिस कर रही है ना, तो बच्चों की एक क्वालिटी है मिररिंग। तो वो देख रहे हैं कि किस तरह से मम्मी डैडी ये सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार उन लोग भी करेंगे। अगर आप लोग हताश हो जाएंगे कि ये सिचुएशन हम लोग कुछ नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे भी निश्चित रूप से हताश हों। लेकिन जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, उनके लिए इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट आप लोग ला रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है। और एक जो बात आप लोगों ने बोली है कि किस तरह से वो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पा रही है, तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। मैं तो स्कूल में रहता हूँ इसलिए एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ, आप लोग शायद साइकिलिंग कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन घर में भी स्किपिंग कर सकते हैं बच्चों के लिए ना। एक टाइम दे दीजिए कि क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सब समय उनको घर में बंद करके रखेंगे, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगी, तो हम लोग तो एक खाली मेंटल लोग नहीं है, वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल पीपल ऑल द। तो ये सब जो हो रहा है, इसलिए बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज घर। और फिर एक जो बात 2-3 बार एक सर बोले हैं कि बहुत रात को 1-2 बजे तक बच्चे नहीं सो रहे हैं ना, तो वो एक टाइम टेबल आप खुद देखिए, आप कितने बजे सोते हैं। अगर आप का टाइम टेबल नहीं है तो एक्सपेक्ट मत करिए कि आपके बच्चों का टाइम टेबल रहेगा। अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है तो एक्सपेक्ट मत करिए कि आपके बच्चों की डाइट हेल्दी रहेगी। आप लोग फर्स्ट टीचर हैं,
और बच्चे लोग आपको मिरर करेंगे, जो आप कर रहे हैं उसको करेंगे। तो अगर आप लोग उसको अपने आप को टाइम टेबल में रखेंगे, मेंटली फिट रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड में रखेंगे, तो बच्चे वही की वही आपको मिरर करेंगे। तो ज्यादा समय तक मैं नहीं लूंगा, ये 2-3 बातें मुझको कहना था। थैंक यू। थैंक यू फादर फॉर शेयरिंग कि अगेन कि एज अ पेरेंट पहले हमको अपना जो रूटीन है, स्ट्रक्चर है, उसको हमें मेंटेन करके रखना है, तभी जाके हम बच्चों को गाइड कर पाएंगे वो रूटीन स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। एंड फादर ने ऑल्सो एम्फसाइज किया कि फिज़िकल हेल्थ पे अभी ध्यान देना, वो एक्सरसाइजेस के द्वारा, वो भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अदरवाइज बच्चे क्या हो जा रहे हैं ना, एक जगह पे बंद होके रह जा रहे हैं, एंड वो जो एनर्जी है वो नेगेटिव वे में फिर निकलेगा थ्रू एग्रेशन और एग्रेसिव बिहेवियर, उन सारे तरीक़ों से फिर वो एनर्जी निकलेगा। सो इफ़ वी वांट हम हमारे बच्चों को हम अच्छे से गाइड कर पाएँ, तो फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए एक सेपरेट टाइम, जहाँ पे एज अ पेरेंट आप उनके साथ करें। ये नहीं कि जाओ कर लो फिज़िकल एक्सरसाइज, ऐसा नहीं होता है, बच्चे नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे स्पोर्ट्स टीचर्स हैं उनको गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, वैसे एज अ पेरेंट वो इनिशिएटिव भी लेना हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फादर। एंड नाउ आई वुड आस्क मिस आकृति कि आप शेयर करें कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत सारे चैलेंजेस के बारे में अभी बोला, उन्होंने सल्यूशंस भी हमें दिया, बट स्टिल दे वांट कि एक्सपर्ट्स के द्वारा उनको और टिप्स एंड टेक्निक्स मिले टू हेल्प देम। तो प्लीज़ आप शेयर करें कुछ। जी बिल्कुल। कुछ चीज़ों जो मैं अपनी साइड से शेयर करना चाहूँगी, जो कि पेरेंट्स ने शेयर किया, जो कि फादर डैनियल ने शेयर किया, बस उसमें ऐड करने के लिए वो ये है कि इस समय पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ मुझे लगती है हम बच्चों के लिए कर सकते हैं, वो है कि हम एज अ फैमिली उनके साथ बात करें, उनके साथ वक्त बिताएं। क्योंकि इस समय पे बच्चे जो उनके आसपास हो रहा है, जो उनकी स्थिति है आसपास, जब अपने पेरेंट्स को टेंशन में देखते हैं, जब वो आसपास की न्यूज़ देखते हैं, जब वो आसपास देखते हैं क्या होता है, तो कहीं ना कहीं से बच्चों पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कभी कभी बच्चे जो है वो चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, कभी कभी बच्चे वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा हम ये कोशिश करें कि एज अ फैमिली हम बच्चों को ये अश्योर करें कि अगर उनको कोई भी चीज़ परेशान कर रही है, किसी भी चीज़ को लेके वो टेंस्ड हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में लेके, तो वो उस बारे में हमसे बात कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चों को एक वो स्पेस देना, उनके साथ हर दिन एक वो टाइम स्पेंड करना, भले वो आधा घंटा हो, भले वो 1 घंटा, जिसमें एज अ फैमिली आप बैठ के सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं एंड आप उनकी बात सुन रहे हैं। उनको एक वो स्पेस देना जहाँ पे वो खुल के अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। फैमिली टाइम स्पेंड करना, साथ में पॉजिटिव चीजें करना, भले ही वो गेम्स खेलना हो, भले ही वो एक्टिविटीज करना हो। इस टाइम पे जैसे बोला कि एक सॉर्ट ऑफ एक रूटीन वगैरह वो करना, स्केड्यूल करना। अगर जैसे स्केड्यूल बनाना है, रूटीन बताना है बच्चों के लिए, तो उसमें बच्चों को इंक्लूड करना। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चे उस प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं तो वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वो स्केड्यूल फॉलो करने में, और वो स्केड्यूल को फ्लेक्सिबल रखना, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वो हो रहा है या बच्चे वो चीज करने से रेजिस्ट करें। फिर उनको हाउस होल्ड एक्टिविटीज में एंगेज करना, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंकलकेट करना बच्चों में। तो छोटी उम्र से लेके भले ही वो टीनेजर्स हों, उनको हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना भी सिखाना, कि भले ही वो वाटरिंग द प्लांट्स हो या डिशेस वॉश करना हो या अपना बेड लगाना हो या अपनी किताबें जगह पे रखना हो। ये छोटी छोटी चीजें भी अगर बच्चे करेंगे तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। फिर रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, जैसे मैंने पहले बोला था कि उसमें, और जैसे पेरेंट्स ने भी बोला कि उस सिस्टम में थोड़ा एडजस्ट करने में बच्चों को दिक्कत आ रहा है, तो और उनको किस तरीके से। तो पहली बात तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये समझना कि ऑनलाइन क्लासेस में एडजस्ट करने में बच्चों को समय लगेगा और थोड़ी दिक्कतें कहीं ना कहीं आएंगी। और जो एक चीज जो बच्चों को बहुत मोटिवेट करती है और उनको अच्छा फील कराती है, वो ये है कि जब उनको ऐसा लगता है हम जितना भी कर रहे हैं वो अच्छा है, तो बहुत जरूरी है कि उनके साथ बैठ के क्लासेस अटेंड करना जहाँ जरूरी हो, उनका होमवर्क में उनका जहाँ उनको जरूरी चाहिए उनकी मदद करना। फिर एक चीज जो बहुत हेल्प करती है वो ये है कि हम उनको ब्रेक्स में काम कराएं।
जैसे अगर क्लास की एक्टिविटीज हैं या होमवर्क है या ऑनलाइन क्लासेस में जैसे आजकल डे टू डे बहुत होमवर्क मिल रहा है, तो एक साथ बच्चे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बहुत लंबे समय के लिए बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो जो भी काम है उसको डिवाइड कर दे थोड़े थोड़े उसमें ब्रेक्स के साथ। उससे क्या होता है, बच्चे थकते भी नहीं है, वो ज्यादा अच्छा फोकस भी कर पाते हैं और इंजॉय भी करते हैं। एंड उसी के साथ साथ जैसे कि एक बात आई थी कि डिसिप्लिन की, कि कहीं ना कहीं कुछ सेंस ऑफ वो हो रहा है कि वो डिफिकल्टी आ रही है, वो एक सेंस ऑफ रिदम मेंटेन करना, वो करना। तो बच्चों को ये समझाना कि एज अ पेरेंट उनको ये कम्युनिकेट करना कि हम जो भी उनको चीज बोल रहे हैं करने को, या जो भी उनके लिए हम बाउंड्री सेट कर रहे हैं, या जो भी चीजें उनको बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे का रीजन क्या है। जब बच्चे को ये समझ आता है कि अच्छा अगर मम्मा बोल रही है इतने बजे तक सो जाओ या इतने बजे आपको ये काम करना है, जब बच्चे उसके पीछे का रीजन समझते हैं, या जब हम उनको किसी चीज के लिए रोकते हैं, भले ही वो स्क्रीन टाइम हो गया या बहुत ज्यादा फोन देखना हो गया, जब हम उनको उसके पीछे का रीजन सब बताते हैं और जब वो बच्चे वो रीजन समझते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लाइकली होते हैं वो चीज फॉलो करने की। तो उनको एक बाउंड्रीज का रीजन बताना और उनके साथ एक मिडिल ग्राउंड रीच करना कि जिसमें वो भी कंफर्टेबल हों और हम भी उनको कन्वे करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं अपनी साइड से भी ऐड कर सकती। थैंक यू मिस आकृति कि आपने बोला कि जो भी हम बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं उनको वो प्लान में इंक्लूड करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि पेरेंट हैं तो हम सब प्लान कर देंगे, हम बना देंगे, फिर बच्चे करेंगे, ये मतलब सस्टेनेबल नहीं होता है। मतलब मे भी कुछ दिन करेंगे, आप जब तक स्ट्रिक्ट होंगे तब तक करेंगे, आप जब तक अवेलेबल हैं तब तक करेंगे, बट द मोमेंट आप अपने वर्क में एंगेज हो जाएंगे फिर वापस वो लोग अपना जो उनको करना है वही करेंगे। सो वो प्लान में उनको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। एंड हम एक्सीड कर गए हैं हमारा जो टाइमिंग था उससे, एंड आगे भी हम ट्राई करेंगे कि इस तरह का वेबिनार्स हम करें ताकि हम और अपना जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करें। मैं एक ही क्वेश्चन पूछ के मैं कंक्लूड करना चाहूँगी आज का जो सेशन हुआ है। ये क्वेश्चन जाता है हमारे साइकोलॉजिस्ट्स को कि जैसे हम थोड़ी देर पहले बात करी पेरेंट्स को अपना ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, ताकि हम बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाएँ। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले हम खुद का मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ सबका हम ख्याल रखें। तो मैं हमारे साइकोलॉजिस्ट से ये पूछना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स को थोड़ा सा टिप्स दीजिए, प्रैक्टिकल टिप्स, ताकि वो सेल्फ केयर, जो खुद का ख्याल रखना, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वो रखने में वो खुद को उस एस्पेक्ट में खुद को आगे बढ़ा पाएँ। इसके लिए मैं पूछना चाहूँगी एंड हम स्टार्ट करेंगे फादर डैनियल से एंड देन आकृति मैम, यू कैन शेयर। ओके, थैंक यू मोनालिसा। जो 2-3 टिप्स मैं बोलना चाहता हूँ पेरेंट्स के लिए भी। एक तो ये है कि पहले तो मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हैं सिचुएशन, जो सिचुएशन हो गई है पैंडेमिक के लिए। कंग्रेचुलेशंस ना, बहुत अच्छी बात है आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं। तो 2-3 बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये है कि आप खुद का अपना ख्याल रखिए, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनसे भी बातचीत करिए, क्योंकि एक जो इमोशनल जो हम लोग का आउटलेट, वो बच्चों के साथ कोई बात नहीं कर सकेंगे। एक फ्रेंड सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल जो रहता है वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा हमें खुशी देता है। हालांकि ये सही नहीं लगता है, हम सोचते हैं कि मेरा परिवार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो खुशी हमें आती है साइकोलॉजी बोलती है फ्रेंड्स के द्वारा आती है। इसलिए आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका कांटेक्ट बनाए रखिए, उनके साथ कांटेक्ट मत तोड़िए। एक तो ये है। दूसरा है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। पैंडेमिक हमारे हाथ में नहीं है, कब खत्म होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हमारे हाथ में है कि किस तरह से हम इसको हैंडल करें, किस तरह से ये जो सिचुएशन आ गई है इसका बेस्ट यूज़ करें। तो वो हमारे हाथ में हम लोग कर सकते हैं।
तो वो करने की कोशिश करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। और जो अपने एक्सरसाइज, मैं खुद तो रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मैं आप लोग भी शायद करते होंगे, लेकिन मैं इंसिस्ट करता हूँ कि हाफ एन आवर 20 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज जो हमारे मन में है ना, फील गुड हार्मोन्स वो रिलीज कर देता है। तो जो हाफ एन आवर, आधा घंटा या 20 मिनट हमने फिजिकल एक्सरसाइज कर दी है, वो फील गुड हार्मोन जो हमारे अंदर आता है हम लोग को फ्रेश कर देता है, और फिर हमारे जो नजरिया है वो जिंदगी को देखने का भी बदल सकता है। तो वो करते रहिए, और आपके बच्चे आपको देखकर वो भी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। Thank you, Father, for the wonderful tips, and I really request the parents कि वो tips करें, practically try करेंगे तभी जाके results आपको experience करने को मिलेगा। एंड जब आप खुद अपना सेल्फ केयर करना शुरू करेंगे तो बच्चे भी शुरू करेंगे वो सेल्फ केयर पे ध्यान देना। तो एक ही तरीका है बच्चों को अच्छा लाइफ जीने का सिखाना, खुद ही पहले वो अच्छा लाइफ जीने हमको सीखना है, तभी जाके हम बच्चों को गाइड कर पाएंगे। एंड मिस आकृति, इफ़ यू कुड शेयर सम टिप्स। जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बच्चे हमेशा सेंटर स्टेज रह लेते हैं। एज अ पेरेंट हम लोग हमेशा अपने बच्चों के बारे में आगे सोचते हैं, एंड कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को बहुत गिल्टी लगता है अपने लिए टाइम निकालने में। तो बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि कुछ समय एज अ पर्सन बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए निकालें विदाउट फीलिंग दैट गिल्ट, to tell ourselves कि it's okay, I am important, हमारी भी needs important हैं और हम कुछ समय अपने लिए निकाल सकते हैं। एंड अपने को अप्रिशिएट करें कि इस टाइम पे आप लोग जिस तरीके से कोप कर रहे हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज को अपने लिए अप्रिशिएट करना और अपने को वो समय देना, भले ही वो 15-20 मिनट हो दिन का, लेकिन अपने लिए वो समय खुशी खुशी लेना। एक चीज जो मैं और कहना चाहूंगी वो ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कपल्स एज अ मदर एंड अ फादर इस टाइम पे आप लोग एक दूसरे का बहुत बड़ा सहारा बन सकते हैं। तो सेल्फ केयर में एक चीज वो भी आती है कि एज अ कपल, एज अ दिस थिंग, आप लोग एक दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करें, कई बार वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। एंड जैसे फादर डैनियल ने बोला, भले ही वो इमोशनल सेल्फ केयर हो, अब कभी कभी जैसे अगर आपको बहुत ओवरवेल्म फील हो रहा है, एक कोने में बैठ के अपने को लेट गो, अगर आपको रोने का मन कर रहा है, एक स्पेस अपने को देना, अपने को रोने देना, या अगर आपको लगता है आपको अपने फ्रेंड से कनेक्ट करना है, अपने फ्रेंड से बात करना, या आपको अगर लगता है कि आपको मेडिटेशन हेल्प करती है, आपको योगा हेल्प करता है, वो चीज करना, या अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प करती है, वो चीज करना, या राइटिंग हेल्प करती है, वो करना, या just sitting by yourself and having a cup of tea, अगर वो हेल्पफुल है वो करना, तो जो भी चीज आपको पर्सनली हेल्पफुल लगती है, बिकॉज सेल्फ केयर ऐसा है जो बहुत सब्जेक्टिव है एंड हर किसी के लिए अलग अलग चीज वो मीन करता है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो आपको इमोशनली भी अच्छा फील कराती हैं, आपको हेल्दी फील कराती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको एक पीस फील कराती है। तो आई वुड से मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने को वो समय देना without feeling bad, and giving that time to yourself positively, connecting with your spouse also, and doing things for yourself जो आपको खुद अच्छी लगती हैं, आपको पॉजिटिव फील करती। तो ये कुछ चीजें हैं। थैंक यू सो मच मिस आकृति फॉर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड कि कितना ज़रूरी है कि हम वो करें जो हमें भी अच्छा लगता है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, हॉबीज़, क्या हॉबीज़ है, क्या करने अच्छा लगता है, वैसे ही एज अ पेरेंट भी हमारा कुछ सेल्फ टाइम जिसमें हम अपना हॉबीज़ प्रैक्टिस करें, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड आई रियली नो कि वंस हम ये सारे एस्पेक्ट्स में हम खुद को ध्यान देने शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं वो धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, एंड हम बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट एक क्रिएट कर पाएंगे फैमिली में। जो शेयरिंग एंड लिसनिंग जो बहुत ज़रूरी है, बच्चों के पास बैठ के सुनना कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है,
ऑल्सो शेयर करना अपने लाइफ में, एज अ पेरेंट आप क्या फेस कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कनेक्शन एक बिल्ड करता है. सो विद दिस I would like to conclude and thank you so much dear parents and Father Daniel and Miss Akriti कि अपना valuable time आप निकाले and अपना such precious experiences आपने share किया. And I am sure कि जो भी हमारे audience होंगे वो ज़रूर इससे कुछ सीखेंगे and अपने life में ज़रूर apply करेंगे. Thanks a lot. Thank you.